a data scientist, and a data engineer. Can you classify these particular roles, Hitesh, in any particular way? For Uh, analyst, scientist, and engineer, what is the basic difference that you see in all three? And what is one thing that you see common apart from data? the common is like they are in same process. Like Mhm. data engineering comes first because in data engineering first, like it get pipeline, clearing the data and all, Mhm. providing available like uh, structure unstructured data set to a data analyst. And after data analyst role is uh, uh, like doing some basic machine learning work and all. And data scientist is like doing from start to end, like checking all the data is proper or not. Mhm. So like you have got a basic idea correct. That data engineering comes first, that we try to load the data with some kind of pipelines, and we make sure that the data compliances are fulfilled, data quality is correct. And then if we want to go for analysis part, what is the basic idea in analyst? What you generally do is you create a report out of the data, or what I'll simply say, you summarize the data. If I'm not wrong, right? This is Yeah, your yeah, primary role as an analyst. yeah, In data scientist, it slightly changes. Rather than making a report, you are making some predictions, right? What is going to happen? In data analytics, a very slight part of it comes, that is predictive analytics, right? With some statistical value of hypothesis testing, etc. But not really much. In a data scientist, our primary position is to have all the analysis skill plus the idea of prediction. And in order to make the predictions, there are two very clear-cut ways. The first way is to have that particular sense which we call as uh, statistical prediction. Based upon data, I will make some kind of statistical prediction with some statistical tool like central limit theorem, sampling and sampling distribution. I would like to extrapolate it for population, etc. Market research, market prediction, all these things comes under predictive analytics category, still of data analyst used by data scientist. But the second part is what makes data scientists very different, and that is the part of artificial intelligence. The actual use case of AI for the purpose of prediction is here what we find in a data scientist position. That is not available even with data engineer or data analyst position. And here in artificial intelligence position, we apply the concepts of machine learning, deep learning, and now one part of deep learning that is now coming like very, very handy on the generative AI portion with LLMs and all these things. This is what makes data analyst and data scientist difference. If I'm correct, Hitesh, correct me if I'm wrong. yeah, 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 That is the basic kind of an idea, right? yeah. We Basically, have. Chalo. So if this is the primary idea that we have in the data building exercises and in the data building values, what we have to go forward with, or what we have to go forward with. Here, there are two concepts that would come. The first concept is how we can make sure that our analysis is a very clean and clear for our predictions. And secondly, how can we make the mathematical understanding of these features very well so that we can really use generative AI features. परवेज, अब आपको भी थोड़ा सा, राइट? परवेज, यू आर फ्रॉम हैदराबाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग. No, actually, I am from Lucknow, Uttar Pradesh. अरे लखनऊ के आप हैं, क्या बात है. मैं बनारस से हूँ. अरे वाह. अच्छा अच्छा.
अभी आप कहाँ हैं, बैंगलोर में? नहीं, मैं लखनऊ में ही हूँ एक्चुअली। यस्टरडे आई हैव सेंट योर एड ऑन इंस्टाग्राम। ओके। तो मैं काफी दिन से सोच तो रहा था, क्योंकि अभी ये साल 1.5 साल से बड़ा बज है मार्केट में, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। क्योंकि पहले तो जो सबसे बड़ी चीज होती थी वो हम हमारे डोमेन में, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में, लाइक आई एम ए बैंकर, तो एनालिस्ट की जॉब होती थी। और ज्यादातर के बीपीओस केपीओस में वो चीजें होती थी। लेकिन 1.5 2 साल से डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, वो सारी चीजें हैं। तो मैं, मतलब बीइंग साइंस ग्रेजुएट, वो भी मैंने बायो से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो मेरे साथ सबसे बड़ा डायलेमा यही रहता था कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा क्या, क्योंकि एनीवेज मैथमेटिकल टूल्स तो थोड़े बहुत रिक्वायर होते ही हैं। तो क्या ये मैं कर पाऊंगा, प्लस जो मेरा 15 इयर्स का मोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो कहीं जीरो ना हो जाए, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो वो बड़ा दिक्कत होती, क्योंकि एक फिक्स खर्चे तो होते ही हैं एट सर्टेन एज, जो आपके पास लायबिलिटी होती है। बिल्कुल, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। तो चलिए मैं अपना भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप कह रहे हैं आप फर्नीचर इंडस्ट्री में, राइट? नहीं, आई एम इनटू बैंकिंग सेक्टर में, इंडसइंड बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। ओके, इंडसइंड बैंक में, अच्छा बैंकिंग आपने बोला। जी जी। ओके, ओके, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैं अपना थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएट हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। आगे पढ़ना चाह रहा था फॉर रिसर्च पर्पस, कुछ अच्छे कॉलेजेस में हुआ सिलेक्शन, बट किस्मत की बात थी कि आगे नहीं कर पाए। उसकी वजह से अपना काम वगैरह स्टार्ट हुआ। सो वंस वी स्टार्टेड ऑन आवर वर्क, आई स्टार्टेड एज अ वेब डेवलपर, कंप्लीट वेब डेवलपर। And जी starting from the web developer, as our organization moved ahead, we were consuming a lot of data. तो उसको डेटा को हैंडल करना था। धीरे धीरे डेटा हैंडल जी करते गए तो टूल्स आते गए। टूल्स का जब काम किया, उसी टाइम कोविड हो गया। एंड इन कोविड, लाइक द इंडस्ट्री वेंट डाउन। आई वाज इन टूरिज्म इंडस्ट्री, वेब जी डेवलपर फॉर ए स्टार्टअप फॉर टूरिज्म। जी हुआ ये कि अब क्या करें, तो अब उसको जो है थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके पढ़ाने की तरफ आए। एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट दैट वी टुक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड इटसेल्फ वाज फ्रॉम अपग्रेड। आपने नाम अगर सुना हो अपग्रेड का नाम बिल्कुल सुना? सुना है। हाँ। तो मैं अपग्रेड में डेटा जो है बिजनेस एनालिस्ट के पोजीशन पे पहली फैकल्टी था। एंड देन मूविंग जी फॉरवर्ड डेटा साइंस के पोजीशन पे आए। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें आप आज चैट जीपीटी जैसे टूल्स देखते हैं, वो जी करते गए। और अपग्रेड में मैं पिछले 1.5 2 साल से रैंक 1 टीचर था यहाँ। with Azhar we started this particular organization. I think we are not very old organization. Azhar is coming from Byju's. उनका 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है इसमें। और मेरा जो है इस तरफ अपग्रेड के थ्रू था। इसके बाद हम लोगों ने जब कंजम्पशन करना स्टार्ट किया, तो हमारे दो कंजम्पशन के गोल्स थे। जी जब मेरा एक्सपीरियंस होता गया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जो होते थे वो 15 20 इयर्स एक्सपीरियंस वाले मैक्सिमम हमारी ट्रेनिंग होती थी। और दूसरा जी होता था कॉलेजेस में। तो आपके यहाँ आपने नाम सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एलपीयू। जी बिल्कुल सुना है। एलपीयू में मैं एज ए एडजंक्ट फैकल्टी अभी भी हूँ। सॉरी। जी इसके अलावा आईआईटी धनबाद, जो आईएसएम धनबाद था पहले, so जी 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 there we had something in Gurgaon and Noida, like many colleges are there, including सुशांत यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, फिर और जिम्स है, बहुत तरह के और कॉलेजेस में किया। बैंगलोर के जी कुछ कॉलेजेस में एमबीए वगैरह में ये हम एंड टू एंड फैकल्टी के तौर पे पूरा सेमेस्टर पढ़ाते हैं जी ऑन बिजनेस एनालिसिस, डेटा साइंसेस, डेटा एनालिसिस ऑल टुगेदर। और दूसरे साइड हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करा रहे थे। इसी में हमारा स्टार्ट हुआ यूएस बेस पीपल का एक दूसरे स्टार्टअप में। अब वहां क्या था कि वहां जो हमारी मेन डोमेन थी वो 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाले मैक्सिमम थे। मोस्ट पीपल फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां जाके सेटल जी हो गए। और अब उनको चिंता है अपने जॉब की, कि जॉब चला जाएगा। अब अलग अलग डोमेन में, लाइक वन पर्सन हुम आई
टीचिंग विद, शी वाज इन कसिनो, प्रॉपर यूएस ब्लैक वुमन, कसिनो में है, 20 साल से उनका कसिनो बिजनेस चल रहा है। अब उन्हें डर है कि एआई उनका जॉब ले जाएगा। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इंडिया की टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर यूएस में सेटल्ड, अब उनको एआई के जो टूल्स आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, दो चीज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है दैट ऑन वन साइड आई एम डीलिंग विथ लाइक कंप्लीट कॉलेज फ्रेशर्स, कॉलेज के जी स्टूडेंट्स, उनको बिल्ड करना है तो उनको हम फोकस कराते हैं कि आप टेक्नोलॉजी सीखो, ठीक है, ताकि आप इंटरव्यू निकाल सको, कहीं आपका कहीं जी सिलेक्शन हो सके, प्लेसमेंट हो सके। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपको दिख जाएगा, लाइक दे टैग मी ऑल्सो, तो वो लंदन बेस्ड स्टार्टअप्स में हुआ, डेटा साइंस में हुआ, अक्रॉस बहुत सारा है। और दूसरी तरफ द सेकेंड फेज इज वंस वी आर डीलिंग विद पीपल हु हैव लाइक एक्सपीरियंस, द फोकस फॉर देम इज नॉट लर्निंग लाइक कोर स्किल्स, क्योंकि वो पहले से कुछ काम कर रहे होते हैं। अब हम कहें हम्म, बिल्कुल नई चीज सीख लो, तो वो टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे, यानी आप अपनी फील्ड में एआई को कैसे बेहतर करा पाओगे। जी लाइक इफ यू आर ए सेल्स मैनेजर, कैन यू यूज एआई टू improve its efficiency tenfold। अब कोई एमबीबीएस स्टूडेंट हमारे पास थे, एमबीबीएस किया हुआ है, सेटल्ड है बाहर, अब वो पढ़ रहे जी हैं, दे आर यूजिंग इट फॉर सर्जिकल वैल्यू। अब वहां से कॉलेज में जब वो जाते हैं एफआरसीपी वगैरह करने इंग्लैंड में, वो कहते हैं एआई हम्म पे करो, देयर इज वन पर्टिकुलर सर्जिकल बॉट, उसका नाम है डा विंची। तो हम्म, डा विंची को, उसको सीखने के लिए कुछ एआई सीखना है, फॉर देम लाइक इट इज नॉट टू लर्न लाइक, आपने बायोलॉजी बोला ना, उसके हिसाब जी से मैं बोल रहा हूँ, वो एमबीबीएस है, एमबीबीएस कर लिया है, डॉक्टर हैं, अब वो सीख हम्म, रहे हैं हमसे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको हम कोर सिखाएं कि आप पाइथन सीख ही लो भाई, कोडिंग की ये लॉजिक है। You have to understand the code and then apply it so that you can develop something in your core field, in your core understanding। ये हमारा दो क्लियर कट स्किल सेट का है। यहां हमारा फोकस होता है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, बट फोकस जी बार बार करें एप्लीकेशन बिल्डिंग पर। जैसे अगर कोई आ रहा है हमारे पास एचआर बैकग्राउंड का, तो हमारे पास एचआर एनालिटिक्स के कम से कम 5-6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर लाइव प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, हम्म, रियल वर्ल्ड डेटा के साथ आप करिए उस पर। somebody is coming from operations area, ऑपरेशन एनालिसिस के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। उसी तरीके से आवर फोकस इज, आपको दुनिया में कोई डेटा दिया जाए, राइट, जी आपको कोई भी डेटा दे दें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आए, बाहर से आए, क्लाइंट साइड से आए, आप उस डेटा को एनालाइज भी कर सको और उसके जरिए कुछ नेक्स्ट सेट प्रेडिक्ट भी कर सको। जी दोज ऑर्गेनाइजेशन लाइक मूडीज एंड ऑल यूज टू डू, कि अगले साल का क्या होगा, हमारा बैंक रेट क्या होगा, होता था जी ना, हमारा जी बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, एटसेट्रा। अब ये जो है काम हम चाहते हैं कि ये हर कोई करे, राइट। जी इंडस्ट्री में बहुत क्लियर कट अब ये वैल्यू है कि दो तरह के लोग बचेंगे, देखिए काम में। एक वो बचेंगे जी जो बिल्कुल लाइक लेबर वर्क कर रहे हैं, ओके, वो जी रिप्लेस नहीं होगा, मैनुअल लेबर वुड एक्सिस्ट। और सेकेंडली जो पोजीशन होगा ना, वो ऊपर के टीयर का होगा, फॉर ए सीनियर पर्सन लाइक यू, यू वुड नॉट रिक्वायर जूनियर्स मच। क्यों? क्योंकि आप अपने एक चैटबॉट को, एक एआई टूल को इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि जो आप अपने जूनियर को समझाते, यू हैव टू डू दिस 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 दिस, इसकी रिपोर्ट दो, मैं इवेलुएट करूंगा, हम्म, दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय एन एआई टूल। A point of view is simple, कि once we are dealing with people who have experience, it is how they can customize this to their needs and how can they हम्म, benefit with this particular leverage of technology। यहाँ जो मैथमेटिक्स की बात है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट, बट मैथमेटिक्स कैसा है ये इंपॉर्टेंट। आप परवेज या हितेश, नाउ यू हैव बीन वर्किंग, आप कभी इंटरव्यू में कहीं बैठो, कोई आपको पेन एंड पेपर देगा, लो ये मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करो, नहीं आज तक तो नहीं दिया और आगे भी कभी नहीं देगा। आप एआई या मशीन लर्निंग में किसी को भी जाएंगे,
आप पेन एंड पेपर पे सॉल्व करा के क्या ही देख लेंगे उससे। आपको तो ये Exactly. देखना है कि उसका एप्लीकेशन वो करना आता है या नहीं। लाइक मोस्ट प्रॉब्लमेटिक जो स्टेटमेंट्स होते हैं, हितेश वुड डिफाइन लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो सबसे लंबे क्वेश्चंस होते हैं वो मैट्रिक्स इक्वेशंस होते हैं, राइट हितेश? डिटर्मिनेंट के, रैंकिंग के। हाँ, Yes, yes. अब वो सारी चीजें जब हम करते हैं डिटर्मिनेंट और रैंकिंग का काम, तो वो 5-6 पेज में होता है सॉल्व, और कहीं एक जगह आपने कैलकुलेशन एरर कर दी तो वो गलत हो जाएगा। Here what is going to happen is that the same thing you can apply by writing 2 lines of code. आपको डिटर्मिनेंट निकालना है कितने भी बड़े मैट्रिक्स का, आप लिखोगे डिटर्मिनेंट विथ लीनियर अलजेब्रा वैल्यू। अब लाइब्रेरी एक उठाएंगे numpy, with a numpy library you have the linear algebra, right, to find the rank of the matrix। हो गया। इवन ये काम एक्सेल में हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सेल में थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी अभी कि व्हाट कैन वी डू, लाइक विथ कोर एक्सेल में हम अगर एआई को समझ रहे होते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम वो काम बहुत इजीली कर सकते हैं। पॉइंट यही है कि हम उस चीज को इस तरह सीखें कि वो किसी के काम आए। और काम आएगा क्या, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कोई चीज फ्यूचर में है। आपने कहा ना बस है, बस नहीं है, ये रियलिटी है परवेज साहब, कि लाइक इट हैज पेनिट्रेटेड ऑलरेडी इनटू द इंडस्ट्री। कुछ सेक्टर्स वो हैं जो स्लो टू ग्रैब है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी आ गए। हर जगह ये आने वाला है। देयर विल बी नो पॉइंट कि ये मतलब बहुत देर आएगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, ये अगले 2-3 साल में हो जाएगा। आई होप आपने चैट जीपीटी दोनों लोगों ने यूज किया है, राइट? नहीं, मैंने यूज नहीं किया, मैंने सुना है, और मतलब कभी उसका एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ी तो इसलिए यूज नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलिए आपका जो है कुछ काम आसान आज कर देंगे तब चैट बहुत जीपीटी के बढ़िया। जरिए। ठीक है, आप मुझे काम बताइएगा जो मुश्किल होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कितना आसानी से कर सकते हैं। ये आपका असिस्टेंट है एक तरह से, जो बहुत समझदार है, जो बहुत तेज है, आप उसको समझा के काम करा सकते हैं। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने हैदराबाद में अपनी बाइक बेची थी किसी को सेकेंड हैंड। हितेश, आई होप हिंदी में आप थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर, ओके है ना? हाँ हिंदी हाँ, अंडरस्टैंडिंग, राइट? ठीक है ना सर। हाँ तो उसने हैदराबाद में अपनी बाइक 4-5 साल पहले किसी को दे दी थी, सेल की थी। जी। उस आदमी ने अभी तक ट्रांसफर नहीं कराई। अब इसका जो है चालान का नोटिस उस तक पहुंचा। उसने बोला, अब वो आदमी उसने किसी और को दे दी, उसने किसी और को दे दी, somebody his hand is there, he does not know। ये गया भी हैदराबाद, बहुत बोला, पुलिस स्टेशन, ये वो, मुश्किल हो रहा था। मुझसे कहा, मैंने कहा एक लीगल नोटिस भेज दो। लीगल नोटिस के लिए वो अपने आसपास में कोई वकील के पास गए। वकील जी। साहब ने एक हिंदी में लिख के एक लेटर दिया, किसके नाम पे? एसपी आरटीओ के नाम पे, हैदराबाद के। जी। मैंने ये कहा कि वो हिंदी समझेंगे? आपको लग रहा है देयर इज अ ग्रेट चांस ही ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश और तेलुगु। तेलुगु इज द Yes. लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इज नॉट इवन देयर। कैसे होगा? जी। तो उसने कहा कि, मैंने कहा कि अच्छा, मैं एक लिख के पैटर्न भेजता हूँ, वकील साहब को दिखाओ, और अगर वो ठीक रहे उसमें जो एडिट करना होगा वो करना, नहीं तो उसको जो है आगे प्रोसीड करना, मतलब एडिट करा लेना वकील साहब के पास। वो प्रिंट करा के गया, वकील साहब ने पढ़ा, कहा अब इसमें तो कुछ लिखने की है ही नहीं जरूरत, यही प्रोसीड कर देते हैं आगे। और वही प्रोसीड हो गया आगे। ये जो था मैंने चैट जीपीटी से लिखा था। आई एम जी। नॉट ए लॉयर, आई डोंट रियली नो द लॉज दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू इट। मैंने कहीं से एक वैल्यू लिया, एक टेम्पलेट लिया, सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील का बना हुआ था, एंड दैट इज फॉर सम कोई मानहानि का केस टाइप था, सम स्टैंड अप कॉमेडियन का केस था। उसको डेटा को डाला जनरेटिव एआई के चैट जीपीटी के टूल में, और ये कहा कि बेस्ड अपॉन दिस राइट मी ए लीगल नोटिस फॉर इंडियन पीनल सिस्टम फॉर द फॉलोइंग वैल्यू। और वो जो जो वैल्यू था मैंने उसकी कंडीशंस लिखा, and the kind of a template it has been able to create mimicking the previous one। जी। वो लीगल नोटिस ऐसा था कि वकील साहब ने कहा कि इसमें अब लिखने की जरूरत नहीं,
द सेम लीगल नोटिस वेंट अवे। पॉइंट ये है परवेज साहब कि अब मेरे जैसा एक आदमी अगर लीगैलिटी का कुछ काम कर पाए बात समझ के, तो मैं जी क्यों किसी वकील के पास जाके पैसा दूंगा? जी अब ये तो नहीं होगा कि सारे वकील रिप्लेस हो जाएंगे, बट वो जी वकील जो छोटा मोटा काम करते हैं लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का या बेसिक एफिडेविट का, वो रिप्लेस होंगे। टॉप वकील अपनी जगह रहेंगे, जो ये बीच की जो एनर्जी है ना वो खत्म हो जाएगी। इसका एक जी और एग्जांपल देते हैं। लाइक आई वेंट टू हैदराबाद फर्स्ट इन 2014। उस टाइम पे किसी जी ने मुझे बताया कि ये ओला करके एक ऐप है, और ये ओला पे जो है आप टैक्सी बुला सकते हो कहीं भी। जी 2014 में जियो नहीं आया था तब तक, तो मोबाइल फोन में इंटरनेट 4G वाला नहीं था, वो 3G वाला था। आपको जी आई होपफुली आपको याद होगा वो सब टाइम, है ना? तो अब क्या था जी कि अब करना था तुमके, कैसे करते हैं बुक? तो वो कहा कि ये फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे आप कॉल करो और आप टैक्सी बुक कर लो, जहां भी लोकेशन होगा आप बता दो। ना हैदराबाद पहली बार आए हैं, पता ही नहीं लोकेशन का, वो डिटेक्ट कर लेगा। हमने किया कहीं से, we were somewhere, we called on that particular number, the tele operator operated, ओके ओके ओके, आप कहाँ पे हैं? आई डोंट नो, ये लोकेशन ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है, उस लोकेशन पे देखा, वहां से ड्राइवर को ट्रैक किया, वेयर द ड्राइवर वाज, ड्राइवर की डिस्टेंस निकाली, आपको कहाँ जाना है उसकी डिस्टेंस निकाली, योर फेयर विल बी दिस अमाउंट, ये बात करके मुझे बता दिया आपका ड्राइवर इतने देर में आएगा, गाड़ी का ये नंबर है। आपको एक एसएमएस आ रहा है, देयर वाज नॉट आल्सो व्हाट्सएप मच, 10 साल पहले की बात है, व्हाट्सएप भी बहुत नहीं था। एक एसएमएस आएगा, उसमें पिन होगी, आप ड्राइवर को देंगे, इतना रुपए होगा फेयर। ठीक, अब बताइए आज 10 साल बाद वो आदमी की जॉब है बची जो ऑपरेटर था वहां? अब क्या हम फोन करके बुक करते हैं ओला कैब? अब तो ऐप से हो जाता है। ऐप से होता है, राइट? तो हम्म अब ये जो मिडिल मैन है इसकी जॉब चली गई। हम्म दैट मिडिल मैन हैज नॉट बीन जस्ट टेकन आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओला, बट फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी भी बीपीओ की जॉब्स थी, बहुत सारी कस्टमर केयर की जॉब थी, अब वो चला गया। अब आप देखेंगे तो उसमें आ जाता है चैट बॉट्स में, मे आई हेल्प यू, ज्यादा 100% चैटबॉट पे आ गई। राइट? 100% चैटबॉट्स आर आल्सो एप्लीकेबल। अब बात यह है कि ये चैटबॉट्स बनाएगा कौन, एंड हाउ कैन हम्म इट डिटेक्ट योर क्वेश्चन? अब ये एआई की एक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये मशीन लर्निंग, हम्म डीप लर्निंग, इन सब में होता है। फील्ड का नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यू आर डीलिंग विथ एक्चुअल टेक्स्ट वैल्यू, आप टेक्स्ट के साथ बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कि आप गाड़ी जाते हैं चला के, अर्लियर देयर वर लाइक लॉट ऑफ ट्रैफिक पुलिस यूज्ड टू बी देयर, ठीक है, जो चालान काटती थी, करेक्ट? अब क्या है कि उनको बहुत ज्यादा डिक्रीज किया है, खासकर बैंगलोर और हैदराबाद में। बैंगलोर एंड हैदराबाद में बहुत सारा डिक्रीमेंट हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कैमरा सेट कर दिए, एंड विथ कैमरा दे कैन कैप्चर योर प्लेट, वो जो आपका नंबर प्लेट है उसको वो कैप्चर करता है कैमरा, और आप पे चालान आप पे सेल्फ जनरेट हो जाता है। इन दुबई तो मतलब ये 100% कर दिया, बैंगलोर और हैदराबाद में ये स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से आपकी अटेंडेंस का सिस्टम था। पहले क्या था, कोई अटेंडेंस वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था, राइट? वहां एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हम साइन करते थे कि हाँ हम इतने बजे आए, वो देखते थे, ओके। धीरे धीरे अब वो क्या हुआ, फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम हो गया, है ना? जी बायोमेट्रिक व्हाट वी से। अब वो हो रहा है फेशियल रिकॉग्निशन। आप मूव करते हैं, आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा, वो समझ जाएगा आप हैं या कोई और। ये जो फेशियल रिकॉग्निशन है, ये कैमरा से जो कैप्चरिंग है, अब ये दूसरी फील्ड है एआई की, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। जी कंप्यूटर विजन, जो भी चीज विजुअल वैल्यू में हम इसको चेक कर पाए, दिस इज पर्टिकुलरली टू एप्लीकेशंस ऑफ एआई विच आर नॉन स्ट्रक्चर्ड। जब जैसे हम डेटा एनालिस्ट में बोल रहे हैं रिपोर्ट बनाना है, समराइज करना है, हम क्या कर रहे हैं? एक्सेल की कोई शीट को कर रहे हैं ना समराइज, सीएसवी जी फाइल है, एक्सेल फाइल है,
कोई भी चीज इसका एक स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट यहाँ क्या है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप अमेजोन की वेबसाइट पे अभी जाए, मैं शो करूं क्या, अमेजोन की हाँ वेबसाइट बिल्कुल। पे आजकल फीडबैक देखा, फीडबैक का जो मैकेनिज्म था, पता नहीं, दिस इज माय स्क्रीन राइट। अगर आप यहाँ अमेजोन की वेबसाइट पे चले, इन अमेजोन फॉर एग्जांपल फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक होम डेकोर का मैं कुछ भी खोल लेता हूँ, फॉर दीज प्रोडक्ट्स आल्सो, लाइक ये प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट फॉर सम आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट इज देयर। अच्छा, ये इसका उतना रिव्यू नहीं है, somebody is whose review has been there ना, large number of reviews I require, say for example इसको जो है 94 रिव्यूज मिले, राइट, 94 रेटिंग्स मिली है, उसके बेसिस पे ये 4.2 स्टार एवरेज। आइए इसकी रेटिंग्स का देखते हैं। नाउ फ्रॉम दिस रेटिंग, दिस इज कॉल्ड द बेसिक रेटिंग, है ना, इन सब की बेसिक जो रेटिंग्स होती है, टॉप रिव्यूज है, लव किया नहीं किया, ये सब लिखा हुआ है, ये तो जी। नॉर्मल है, तो हम भी देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद अब मैं दिखाऊंगा कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा यूज होता है। लेट मी डुप्लीकेट दिस वन एंड गो टू सम काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन ना, जो ज्यादा यूज होता है, फॉर एग्जांपल लार्ज एप्लीकेशन लाइक स्प्लिट एसी कोई निकालते हैं। अब यहाँ मुझे वो वैल्यू चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, फॉर एग्जांपल दिस पैनासोनिक एसी जिसमें 3200 प्लस हमारे पास रेटिंग। आइए इसको खोलते हैं, इसकी रेटिंग्स देखते हैं। अब देखिए, दीज आर द रेटिंग्स ऑफ यूजर्स, ये सारे यूजर्स की रेटिंग्स है, रिव्यू है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट ये देखिए, ये एक समरी है, करेक्ट, ये एक समरी है जो कि अमेजोन ने खुद बनाई है, विच इज रिटन AI जनरेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ कस्टमर रिव्यू, करेक्ट। अब ये क्या, कस्टमर्स लाइक द वैल्यू, कूलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द एयर कंडीशनर, फॉर एग्जांपल दे मेंशन इट इज अ स्टैंड आउट चॉइस इन द मार्केट, has true AI technology and is very low power consuming. Some are happy with quality. That said, अब negatives क्या है? Some complain about the installation service, performance and noise. ये इसने ये values भी निकाले, like these are the positive things, these are the negative things. और ये negative और positive निकला कैसे? If I click on service, ये कौन कौन लोगों ने 11 पॉजिटिव और 95 नेगेटिव है। अब इन सबका जो है ये वैल्यू है, देखिए, installation experience was also not good and they did not do a clean job, correct। अब यहाँ हितेश पढ़िए, is there any word mentioning service, यहाँ सर्विस कहीं लिखा है इस लाइन में, सर्विस कहीं लिखा हुआ है, नहीं। नहीं लिखा है ना, बट स्टिल ये समझ पा रहा है कि ये सर्विस की बात हो रही है, राइट। यानी हमने कोई एक कैटेगरी बनाया है सर्विस, और यूजर की जो मतलब रिटर्न वैल्यू है, कभी कभी भी ऑडियो वैल्यू भी, वो उसके बेसिस पे सेंटिमेंट एनालाइज कर रहा है, वेदर इट इज पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, एंड व्हाट सब कैटेगरी ऑफ फीडबैक के अंदर ये फिल होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपका। और ये जो आपको अमेजोन की वेबसाइट पे दिखा, ये क्यों दिखा इस प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज देयर आर इनफ रेटिंग्स, 3268 रेटिंग्स। इस प्रोडक्ट पे जो हमने पिछला प्रोडक्ट देखा था, इसमें ऐसा क्यों नहीं आया, बिकॉज देयर आर नॉट इनफ रिव्यूज एंड रेटिंग्स, इट हैज लाइक वेरी लेस नंबर ऑफ रिव्यूज, वो समराइज नहीं कर पा रहा है, यहां ये समराइज कर पा रहा है। अब सेकेंड पॉइंट आप देखिए, ये AI का एक्चुअल यूज केस कहां है, where there is enough data for it to understand, summarize and predict. डेटा साइंटिस्ट वही अच्छा है जिस कंपनी के पास डेटा है। जिस कंपनी के पास डेटा ही नहीं है, वो डेटा साइंटिस्ट कैसे बनेगा, वो या यूज क्या करेगा। अब देखिए, इंडिया में जो डेटा साइंस की जो पोजीशनिंग है ना, वो धीरे हुई थोड़ी इन कंपैरिजन टू वेस्ट, स्पेशली US। टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम है डेटा के बारे में, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने डेटा कैप्चर नहीं किया है पिछले 15-20 सालों में, जिस तरह वेस्ट ने किया है। लाइक गूगल के पास क्या है, गूगल का क्या बिजनेस है, उसके पास डेटा है ना। मान लीजिए गूगल मैप्स पे गूगल पैसा कमाता है, कैसे? गूगल मैप ने कितना पैसा लगाया डेटा कैप्चर करने के लिए, रोड्स कितनी होंगी, कौन रोड पे क्या है नहीं है। अब कोई एक थर्ड पार्टी, मान लीजिए मैं एक शॉप खोलता हूं, आई वॉन्ट टू पुट कि गूगल इमेज पे वो दिखे, उसके लिए मुझे पे करना है ना, ताकि वो ऊपर दिखे। फॉर गूगल फॉर बिजनेस वो आता है, अब वहां से पैसा कमाएगा, बट उसके लिए उसने डेटा रखा है। डेटा इंडियन कंपनीज के पास कम था। पिछले 4-5 साल में इंडियन कंपनीज को भी ये समझ में आया कि दे रिक्वायर डेटा फॉर दिस थिंग। तो अगर आप इसकी पीक बहुत फास्ट नहीं देखते हैं, सिर्फ बस सुन रहे हैं ना, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं देख रहे, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन से है कि इसके पास अभी जो है डेटा इंडियन कंपनीज के पास उतना नहीं था। कोविड एंड पोस्ट कोविड डेटा कैप्चर बहुत हुआ है। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव पीपल लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल इन डेवऑप्स, है ना हितेश? डेवऑप्स में, एमएल ऑप्स में बहुत सारे लोग हैं आज। क्यों? क्योंकि उनको डेटा बिल्डिंग, डेटा एक्सरसाइजिंग की वैल्यू समझनी है। अब जब डेटा होगा लार्ज स्केल, उसकी एनालिसिस करनी है। उसकी एनालिसिस अब दो तरह से देखिए। एक एनालिसिस है जैसे हितेश कर रहे हैं। हितेश, आई होप दैट यू आर ओनली डूइंग इट फॉर स्ट्रक्चर्ड फाइल, राइट? Yeah, like the files related to company related, like resume, which comes now, like we do analysis on that. So you basically do that ATS ranking, right? On resume. Yeah, ATS ranking and doing some NLP in that, like keywords and all. Keywords analysis, right? Stop Yeah, words का निकालना। top words, yeah. हाँ, जो लिंक्डइन में भी यूज होता है, या फिर हर जो दूसरे नौकरी वोकरी में भी यूज होता है। राइट राइट। उसको हम रेज्यूमे पार्सर एप्लीकेशन कहेंगे, है ना? हाँ हाँ, रिज्यूमे पार्सर एप्लीकेशन। ठीक ठीक। तो अब ये जो है देखिए परवेश, आई डोंट नो आपको कितना आइडिया है। आपको पता है कितने लोग जैसे भरते हैं रेज्यूमे कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए, राइट? इसका कुछ आइडिया है? जैसे कि मान लीजिए एक एचआर को कितना प्रोसेस करना पड़ता है रेज्यूमे वगैरह? आई डोंट थिंक आई एम ऑडिबल टू हिम। नहीं नहीं, आप ऑडिबल हैं, उसका एक्चुअली आइडिया नहीं है अभी। ये आजकल जो ट्रेंड में आ चुका है, आपने देखिए पहले ये चीज नहीं होता था जब हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए जाते थे। अभी हर चीज में जो बात हो रही है, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली हाँ, रेज्यूमे। लिंक्डइन पे भी बात हो रही है, या किसी और सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, राइट। इंस्टाग्राम या आपको फेसबुक, आइडिया है? उसमें भी यही हो आप रहा है। आपको ये आइडिया है कम से कम ना, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपको ये इतना तो पता है ये हो रहा है। लाइक जी देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री में जो चला जाता है ना, वो सिर्फ बैंक का हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम जी आस्किंग दिस, है ना? तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ ऐसे सीनियर्स भी हैं, सम ऑफ देम आर इन एक्सिस एंड ऑल, तो वो बहुत मतलब स्पेसिफिक अपने जोन में होता है, और हर कोई अपना काम करता है तो अपने जोन में वो रहता है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है ना कि इंडिया में लोग हर पोजीशन पे बहुत एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास उतने लोग नहीं। लेकिन स्मॉल जी ऑर्गेनाइजेशन एक ही दो एचआर होते हैं। या तो हम कंसल्टेंसीज को, एचआर कंसल्टेंसीज को आउटसोर्स करें, या होते हैं वो क्या करते हैं ना कि उनके पास मतलब आधा एक मिनट है पार्स करने का। बहुत बार ये लोग बायस्ड हो जाते थे कि मतलब किसी को भी दे दिया, हाँ ठीक है ये टॉप 50 है या 100 है। अब उसको जो है ट्रेन करने के बाद पता चला कि ये तो केपेबल ही नहीं है काम करने के। अब फायरिंग जी है, हायरिंग है, ये प्रोसेस में प्रॉब्लम था। अब इसको करने के लिए क्या किया हमने, रेज्यूमे को पार्स करना है। रेज्यूमे से स्किल्स निकाल ली। स्किल्स हम्म निकाल के हमने बता दिया कि हाँ भाई इस पोजीशन के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो इसने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया या नहीं। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इसके बेसिस पे इसकी रैंकिंग क्या होगी, कौन सा रेज्यूमे ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा।
अब इसको जो है मैनुअली अब बाद में करेंगे, पहले सिस्टम कर देगा। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एआई की एप्लीकेशन है, यही एनएलपी का काम है। अब इन केसेस को अभी तक तो हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए है नहीं, होगा क्या धीरे धीरे, कि एक कंपनी में अगर आप मैनेजर हो तो आपको सारी जिम्मेदारी दे देंगे कि आप जी रिक्रूटिंग भी करो, आप जो है ऑपरेशंस का भी देखिए, आप टास्क भी असाइन कीजिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होगा काम कैसे, यहाँ आपको एआई हेल्प करेगा। तो अब ये जो एक और बात है ना कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, तो ये हाफ ट्रू है। हाफ ट्रू ये है कि यस, एआई विल रिप्लेस ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर जॉब्स, बट वो सिर्फ एआई नहीं करेगा, वो लोग जो एआई पे ट्रेंड हैं वो और लोगों की जॉब लेंगे। मान सही लीजिए कह आप रहे हैं। हाँ, आपको ट्रेनिंग मिल गई, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 5 आदमी का काम मैं खुद कर सकता हूँ, आप ही की सैलरी बढ़ जाए। और ये कंपनीज भी समझती हैं। मुझे अभी एक ट्रेनिंग का मिला हुआ था, एंड दैट इज फॉर बीपीओ के लिए। बीपीओ में उन्होंने जनरेटिव एआई पे ट्रेनिंग कराई। नन ऑफ देम हैव, अब मैं, मेरे पास टाइम भी नहीं होता कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, 2 हफ्ते की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, मतलब टोटल 20 घंटे मिलने हैं। 20 घंटे में अगर मैं पाइथन जाऊं पढ़ाने, उस पे मशीन लर्निंग बताऊं, उस पे फिर एनएलपी का एप्लीकेशन कैसे बनेगा, और फिर जनरेटिव एआई, तो वो पॉसिबल नहीं। हम हमें सीधा सीधा उसको जनरेटिव एआई यूज कैसे करना है ये बताना है, टूल पे बताना है। अब उस हम्म केस में मुझे ये था कि ये लोग टेक्निकल नहीं है, बीपीओ में काम कर रहे हैं, सभी का वही ब्रैकेट है, 10-20 साल एक्सपीरियंस वाला सीनियर ब्रैकेट में जो होते हैं बीपीओ में। बीपीओ में ज्यादा दिन लोग रहते नहीं हैं, चले जाते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। अब उनको ट्रेन इसलिए करना है कि जूनियर्स उन्हें चाहिए ही नहीं, बहुत ज्यादा लोग को तो वो फायर कर देते हैं। और अब इनको जो पैसा बढ़ा के देना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ भाई ऑब्वियसली सैलरी कोई मांगेगा ज्यादा, हम्म उसको वो चाहते हैं कि वो ऐसा ट्रेन कर दें कि वो 10 आदमी का काम कर ले, क्योंकि इसको आइडिया है काम कैसे होगा, वो 10 आदमी का काम करे और फिर हमारी काम आसान हो जाए। इस टाइप से चल रहा नहीं, है। लेकिन इससे जैसे जैसे जो ये डेटा जो ड्रिवन प्रोसेसेस हैं, जैसे आपने अभी बताया मशीन लर्निंग और पाइथन और ये सब, इन सब से चीजें कस्टमाइज भी तो बहुत हो जाती हैं। अब आप मुझे फॉर एग्जांपल आप 500 लोगों का फाइल दे दीजिए, तो हम्म। हो सकता है मुझे 2 दिन लग जाए उससे जो आप डेटा मुझसे एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जी मुझे तो बिल्कुल। पता ही नहीं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो पहले समझूंगा, फिर उसका अलग अलग एक्सेल बनाऊंगा या कहीं नोट डाउन करूंगा, फिर एक साथ पुट हम्म। ऑन करके वो जो निकालना होगा निकालेंगे। लेकिन अगर मुझे डेटा साइंस या पावर बीआई का टूल पता है, तो हो सकता है वही चीज मैं 3 से 4 मिनट में निकाल लूं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो ये ये तो अच्छी चीज है ये तो। ये बिल्कुल अच्छी चीज है, ये खराब चीज तो है ही नहीं, तो हम सीखते क्यों। ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही, इट इज कंप्लीटली लेजिट एंड इट इज कंप्लीटली यूजेबल। देखिए, आप हमारे थोड़ा सा हमसे अपने पहले जाएं, तो रेडियो हुआ करता था, जी। राइट। रेडियो के ऊपर जो काम करते थे वो रेडियो इंजीनियर्स कहलाते थे। हम्म उन रेडियो इंजीनियर्स की जॉब चली गई पूरी की पूरी जब टीवी आया, और टीवी और नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के इंजीनियर्स आए। उनकी जॉब चली गई जब वो कंप्यूटर्स का स्टार्ट हुआ, और हम्म कंप्यूटर्स वालों की अब जाएगी जब वो एआई ड्रिवन वैल्यू स्टार्ट होगा। तो काम ये नहीं है कि वो हम्म रिप्लेस हुए लोग, वो रिप्लेस हुए हम्म, तो कितने और लोग बढ़े भी तो जॉब में। हम और आप बात कर सही। पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। जी। दैट इज द पर्टिकुलर रीजन व्हाई वी हैव टू टेंड इट टू द पॉजिटिव साइड, और इसका यूज केस समझना है। अब आपने जो बात कही है, जैसे अब आप बताइए मुझे, आपके डे टू डे वर्क जी में क्या होता है, जैसे मतलब आप, अगर आपको करना है, आप मार्केट रिसर्च भी करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, मार्केट रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर हैं तो उनके प्रोडक्ट का नॉलेज भी रखना पड़ता है। हम्म। प्लस जैसे आपने बताया, रिक्रूटमेंट भी खुद ही करना है, ऑपरेशंस का काम खुद ही कराना है, फॉर्म भी कोई एप्लीकेशन आता है तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो टीम है उससे इन्वर्ट खुद ही कराना है। तो अच्छा, खुद ही। ओवरऑल जो भी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग से लेकर ऑन बोर्डिंग ऑन जॉब आफ्टर सेल्स तक सारे चीज खुद ही करना है। खुद ही करना है। चलिए अब आपका थोड़ा काम हेल्प करते हैं, ठीक ना। ये हम जी चले जाते हैं लिंक्डइन पे, मान लीजिए मुझे कोई एक प्रोफाइल पे किसी को हायर करना है, ठीक है। जी आई एम ऑन लिंक्डइन,
मुझे सर्च करने दीजिए किसी की कुछ प्रोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल आप किन पोजीशंस में हायर करते हैं? मैं तो जनरली रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ये सब जो बैंक के ग्रेड्स होते हैं इन पे लेता हूँ। चलिए मान लीजिए रिलेशनशिप मैनेजर जो अभी से है पहले से, उनमें से किसी को हमें हायर करना है, तो मैं ये जी। पीपल में सर्च कर लेता हूँ हु आर ऑलरेडी रिलेशनशिप मैनेजर्स। ये हम्म। कुछ लोग मुझे मिले रिलेशनशिप मैनेजर के। अब मैंने सेल्स का कोई प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं लिया है ना। जी। अब यहाँ से मुझे पर्सनली अगर करना हो तो एक एक करके कई बार मुझे सर्च करना पड़ेगा लोगों को, एक एक आदमी का देखेंगे करेंगे। इनका डेटा अगर बनाना हो डेटाबेस में कॉपी पेस्ट करके टाइम लगेगा, हम्म। करेक्ट। आइए थोड़ा सा जी। इसको इजी करते हैं। हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में। सिंपल, कुछ भी नहीं करेंगे। ये चैट जीपीटी पे हम्म। हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इस पे हम कुछ भी पूछेंगे वो बताएगा। लाइक आपको जोक सुनना है तो वो जोक भी बताएगा, मैथ्स भी बताएगा, हिंदी संस्कृत सब बताएगा। यहाँ हम अब हम्म। काम करते हैं ये रिलेशनशिप मैनेजर का। कुछ भी नहीं करेंगे हम, यहाँ से कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल सी किया, सारा कॉपी हो गया पेज का। हम्म। यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लिंक्डइन सर्च फॉर इट टेबल। अब इसमें हम लिख सकते हैं गूगल शीट में करना है, एक्सेल में करना है, कैसे भी करना है। हम्म। देख, ये सबके वैल्यूज बताएगा। इन सबके नाम बता रहा है, कहाँ के हैं, जी। क्या हैं, कौन सा पोजीशन है। और ये डेटा ऐसा है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में रखूं, एक्सेल में रखूं, गूगल शीट में रखूं, एबल टू डू दैट, करेक्ट। जी। यही काम है हमारा। अम, ये अब आया। मान लीजिए कि यहां से हमारे पास सारा डेटा मिला, लेकिन इसने एक चीज मिस किया, एंड दैट इज द लिंक टू द प्रोफाइल। मुझे लिंक्डइन आईडी भी चाहिए, लिंक्डइन व्हाट टू से एड्रेस भी चाहिए। सो नाउ हम्म। ये हमारा होता है प्रॉम्प्ट। यहाँ हम मैसेज करते हैं, हम्म। इसको हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मेक श्योर टू हैव लिंक्डइन व्हाट टू से एड्रेस ऑफ द सेम। अब ये लिंक्डइन प्रोफाइल भी दे देगा हमें, जो जो हम्म। जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी आ गई। अब ये हमारा काम आसान हो गया। लेट मी स्टार्ट ए ब्लैंक स्प्रेडशीट। इसी तरह से अब हम कई पेज का कॉपी बस कॉपी पेस्ट करके डालेंगे 5 मिनट के अंदर, यानी 10 into 100, 1000 प्रोफाइल का मेरा डेटा तैयार हो जाएगा। आसान है, जी। बहुत आसान है। ये काम है हमारा। इसी तरीके से अब मान लीजिए यहाँ मैंने कॉपी किया, यहाँ मुझे करना है पेस्ट, हो गया। यही काम है। अगर मैं समझा पा रहा हूं इसको सही से, सही तरह से प्रॉम्प्ट कर पा रहा हूं, सो इट कैन वर्क लाइक ऑन एनीथिंग। मैंने जो बोला था जैसे लीगल असिस्टेंट का काम, देखिए इसने जी। जो बनाया था मुझे फॉर हम्म। लीगल असिस्टेंट, लीगल नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, ये लीगल नोटिस था जो इसने बना के मुझे दिया, ठीक है। फ्रॉम द डेस्क ऑफ दिस लीगल नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट against the failure to complete vehicle registration for the bike with registration number blah blah blah। ये सारे जो है नाम बस उसको फिल करना था यहाँ चेंज करके, इसमें नंबर 5, नंबर 6, मोटर व्हीकल एक्ट, सब कुछ लगा दिया जी। ऑटोमेटिक। ये सारे काम जो है हम यहाँ से करा पाते हैं। इसके अलावा बहुत टाइप के जीपीटीज हैं जो बनते हैं। एक है इसका यूज केस समझना, है ना। इसको यूज कैसे हम्म। करते हैं?
ये कहलाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये आप 2 घंटा 4 घंटा लगाओगे, आ जाएगा। बट पॉइंट ये है कि ये तो सिर्फ हमें टेक्सचुअल या कुछ भी इस टाइप का एनालिसिस दे रहा है। अगर हमें इससे जेनरेट ही कुछ कराना है बेस्ड स्पेसिफिक ऑन आवर डेटा, आवर अंडरस्टैंडिंग, ये वैसा ही है जैसे कि अगर आप नॉर्मल मतलब डे टू डे के कपड़े आप नॉर्मल मॉल से खरीद लेते हैं, नॉर्मल दुकान से आप खरीद लेते हैं। बट अगर आपको पर्टिकुलर कोई ओकेजन पे काम है, आपकी अपनी शादी हो रही है, कपड़े सिलवाने हैं, तो आप टेलर के पास जाते हैं बेबी, राइट? फिटिंग जी। परफेक्ट है, टेलर मेड फिटिंग। वही है, अगर हमें टेलर मेड फिटिंग चाहिए, पर्टिकुलर टू आवर टास्क चाहिए, तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसको हमें अपने डेटा के अकॉर्डिंगली फाइन ट्यून करना होगा। यहाँ पे ये 2 कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के जो एप्लीकेशंस हैं, एआई के एप्लीकेशंस, दीज आर कॉल्ड एज LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो पहले से प्री ट्रेन्ड है। बहुत सारी इसमें ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग करनी है। इसका एक जगह जो कलेक्शन आपको मिलेगा वो है दिस वेबसाइट कॉल्ड एज हगिंग फेस। हितेश, हैव यू यूज्ड हगिंग फेस? इसका यूज हुआ है कभी आपको? हगिंग फेस का किया यूज? इन विच लाइक ऑल द मॉडल्स, जितने भी आपको एआई के मॉडल्स हैं वो यहाँ मिलेंगे, लाइक मोर देन 8 लाख मॉडल्स अभी मिलेंगे। Many models are those models which are like auto languages, sorry, which are actual models, और बहुत सारे मॉडल वो हैं जो कि फाइन ट्यून्ड मॉडल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा डाउनलोड किन चीजों का हुआ है, तो आप दिखेंगे कि MIT का फाइन ट्यून्ड ऑडियो सेट, यानी कि ये फाइन ट्यून्ड हुआ है MIT का, जो किसी और ने बनाया होगा, विच इज फॉर AST फाइन ट्यून्ड ऑडियो सेट वैल्यू। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो GPT के हमारे सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। से फॉर एग्जांपल GPT, देखिए अब GPT जो मॉडल है वो स्वीडन का अलग आपको मिल जाएगा, है ना? अलग अलग टाइप का GPT, सुरेन मिल जाएगा, फिलाडेल्फिया का मिल जाएगा, सिम्पसन मिल जाएगा। ये क्या है, ये सारे वो मॉडल्स हैं जो लोगों ने अपने डेटा के अकॉर्डिंग फाइन ट्यून किए, और ये सारे फाइन ट्यून मॉडल आपको मिलेंगे स्पेसेस के अंदर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु हैव लाइक मेड द मॉडल, जो कोर मॉडल होता है उसके ऊपर। हमने एग्जांपल दिया था अभी आपको ओला का, करेक्ट? जी। ओला ने अपना खुद का एक जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म रखा है, दिस इज कॉल्ड कृत्रिम, विथ कृत्रिम वैल्यू, संकल्प बिल्डिंग द इंडिया ऑफ टुमारो विथ कृत्रिम। इट इज एन पर्टिकुलर ऑफरिंग फ्रॉम ओला। ये भी वैसे ही काम करता है। यू कैन आस्क समथिंग, say for example, I'll say simple question, introduce yourself। अब ये अपना इंट्रोडक्शन देगा, आई एम कृत्रिम, इंडिया फर्स्ट एआई असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब यहाँ पे आगे आप इसके जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ऑल टुगेदर विच ऑर्गेनाइजेशन owns you, I can communicate with it in any particular format। अभी ये बहुत बीटा वर्जन में है, आई डू नॉट बिलोंग query and sharing the response in its present form could be unreliable। पहले उसने आंसर दिया, वो अनरिलायबल हो गया, राइट? लेट मी डू सम वैल्यू, लाइक इस पे साइन इन लॉग इन करेंगे तो हो जाएगा। बट ये इंडिया का अपना है, इनका ये कहना है कि ये जो है लाइक इन इंडियन लैंग्वेजेस भी ये काम करेगा, लाइक क्रिएट ए कवर लेटर फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये पर्टिकुलरली कवर लेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर वैल्यू, ये बना देगा। फॉर डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट वैल्यू बनाएगा। ये काम धीरे धीरे हर कंपनी करेगी। एवरी कंपनी विल हैव इट्स ओन बीटा, ये चैटबॉट, जनरेटिव एआई का बॉट होगा, ट्रेन कर देगी अपने एम्प्लॉयज को कि आपको इसको यूज कैसे करना है। एक्सपेक्टेशन ये होगा कि आप इसका यूज करते हुए बहुत सारे काम खुद कर लो। इससे पूछिए, लाइक हमारे पास होते हैं टीम लीड्स होते हैं ना, आपके पास भी होंगे, आपका जूनियर आपसे पूछता होगा
ये कैसे करना है, वो काम कैसे करना है। अब आपको ये नहीं चाहिए, आपने उठा के ये दे दिया, इसका लॉगिन लो, इससे पूछ लेना। ये क्या कर रहा है, ये आपके काम को देख रहा है बस। डेली जो आप काम करते हैं उसको ये बस देखता है, आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उसकी नोट रखता है, और फिर किसी को क्वेश्चन करना होगा वो बता देगा। ये काम है एक्चुअली एआई के, यही सीखना है हमें एआई में। एक चीज है ना जो डेटा साइंस में हम पढ़ाते हैं, एक चीज है जो हम कराते हैं। पढ़ने वाला काम आसान है, कराने वाला काम मुश्किल है। डेटा साइंटिस्ट इज ऑल अबाउट कराने वाला काम, हाउ कैन यू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इट। तो थोड़ी सी बात मैं सिलेबस की करता हूँ, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं डेटा साइंस में, राइट। जी 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 बिल्कुल। चलिए हितेश, let us start with the syllabus portion, right? Hitesh, what are the core skills that we require in our data science curriculum? What do you think? Statistics, Okay, stats you are saying, ठीक, चलिए। Excel, ये टूल हो गया है ना, एक्सेल, चलो। और बताइए, आप भी बताइए परवेश, कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लगता है डेटा साइंस के हिसाब से। डेटा एनालिसिस के लिए तो सबसे पहले तो डेटा ही चाहिए। हाँ, डेटा चाहिए और भी। डेटा पे काम करने के लिए मतलब टूल्स चाहिए, जैसे वो पाइथन हो गया एक टूल। हम्म और क्योंकि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आई सपोज वो कोडिंग वगैरह जो की जाती है, मतलब जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है। और चलिए, ऐसा है ना कि हम दो पार्ट में करते हैं, एक टेक्नोलॉजी लिख देते हैं कि जो जो हमें चाहिए, और एक जी वो जैसे मैथ्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, इस टाइप की चीजें, है ना। मैथ और स्टैट्स तो चाहिए, स्टैट्स तो चाहिए क्योंकि जो डेटा आप ड्राइव कर रहे हो वो तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल ही डेटा है, तो वो तो एनीवेज जरूरत है ही है उसकी। हम्म चलिए, इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, मैथ्स और स्टैट्स पे कैसी चाहिए। जी। और बताइए, एक्सेल, पाइथन, अपार्ट फ्रॉम दैट। और बाकी इसमें वही सब आता है, मशीन लर्निंग और machine learning, Tableau, Power टैबलू, BI, मशीन लर्निंग यहाँ एसक्यूएल। आएगी, टैबल्यू, पावर बीआई, चलो। और बताओ। एसक्यूएल भी तो इसमें आई सपोज आता है। बिल्कुल आएगा, डेटा बेसिस विथ एसक्यूएल। और और चैट जीपीटी तो खैर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो आप ही ने अभी बताया है। वो हम जो है एप्लीकेशंस में उसको देख लेते हैं। अच्छा। तो जनरेटिव एआई एप्लीकेशन है, चलिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, ये होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो हम भूल रहे हैं। हमने डेटा लिया, जी। ये डेटा कहीं ना कहीं तो होगा ना, हम्म ये डेटा पहले लेना तो पड़ेगा हमें। वी हैव टू फाइंड हम्म द डेटा। ये काम जो होता है ये हम्म जनरली होता है रिसर्च एनालिस्ट का, डेटा लाना, है ना, जो मार्केट हम्म रिसर्च भी हम कह देते हैं, या कोई भी चीज, तो जी जी। रिसर्च एनालिस्ट का पोजीशन है। अब रिसर्च करके जो डेटा लाते थे हम, वो काम अब करता है डेटा साइंटिस्ट। देर हम्म आर टू टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स जहां से हम फाइंड करते हैं डेटा। एक होता है डेटा जो कि पब्लिक डेटा है सभी के लिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो सकती हैं, पब्लिक वेबसाइट हो सकती है, पब्लिक रिपोर्ट्स हो सकती हैं कि केपीएमजी ने कोई रिपोर्ट निकाली है, मकिन्से ने निकाली है, डेलॉयट ने निकाली है। कुछ पब्लिक डेटा सोर्सेज हैं, जैसे कैगल है, ये हगिंग फेस है, हम्म ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे डेटा सेट्स मिल जाएंगे आपको। कुछ चीजें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, जो कंपनी की हम्म स्पेसिफिक है, जैसे आपके हम्म बैंक का डेटा है, वो तो प्राइवेट डेटा हम्म, है। सही बात। हमारा जो मैक्सिमम काम होता है वो पब्लिक प्राइवेट मिला के होगा। अगर हम सिर्फ प्राइवेट डेटा की बात कर रहे हैं, ओनली प्राइवेट डेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे हैं। नहीं, लेकिन इसमें तो मान लीजिए जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल डेटा है वो हम्म तो उसका अपना प्राइवेट डेटा है, तो वो हम हम्म, कैसे एक्सट्रैक्ट कर, वो तो वही आदमी एक्सट्रैक्ट कर पाएगा ना जो अंदर ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे पब्लिक में जो अवेलेबल डेटा है वो तो उस तरह से तो हम नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप मेरा
फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर ही आपको निकालना है हम्म, या मोबाइल नंबर निकालना है और आपके पास नहीं है, तो वो तो आई होप नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो प्राइवेसी में आ जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल आएगा ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट डेटा तो तभी आप एक्सेस करेंगे जब आपको परमिशन है उसकी, या तो आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप इंडसइंड बैंक में हैं और इंडसइंड जी बैंक का आपको एनालाइज करना है डेटा, तो आप कर जी सकते हैं। या फिर इंडसइंड बैंक ने आपकी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया एनालिसिस करने के लिए, जी। और वो डेटा की एक्सेस देते हैं, तब कर सकते हैं। वो हम्म बात ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि डेटा एनालिस्ट जनरली प्राइवेट डेटा पे ही काम करते हैं, हम्म। है ना हितेश? यू आर नॉट वर्किंग ऑन पब्लिक डेटा मच, करेक्ट हितेश? एम आई ऑडिबल स्टिल? पब्लिक डेटा पे जैसे क्या है, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट डेटा कभी आपने लिया है data.gov.in से? कभी लिया है, आप, हाँ लिया है? लिया लिया है, है लिया तब, है, लिया है। लिया है तब तो ठीक है। जनरली जो है वो हमारे, टेंडर वगैरह जब होते हैं हाँ, या कोई नया, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों में तो जो हम लोगों का अकाउंट्स खोलने होते हैं, हम्म, तो एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है, उसमें जितने भी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट्स लॉगिन होते हैं, मतलब उस स्टेट में उसका डेटा फेच हो जाता है, तो वहां से हम्म, फिर निकाल सकते हैं। हाँ। तो वो जो फेच आपको करके दे रहा है ना, कोई टूल दे रहा है, राइट? जी जी। एज ए डेटा साइंटिस्ट ये आप पे छोड़ दिया जाता है, आप टूल के थ्रू करो, आप पाइथन के थ्रू करें, हम्म कहीं भी करें। एक इसमें हम्म। बहुत अच्छा सोर्स है, वो होता है डेटा स्क्रैपिंग का। हितेश, आई होप यू हैव डन सम डेटा स्क्रैपिंग। एम आई ऑडिबल हितेश टू यू? आई थिंक कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या? इस टाइप की वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जो कि प्राइस प्रेडिक्शन करती हैं। सॉरी, ये इस टाइप की जो कुछ होती हैं, मान लीजिए कि मैं पुराना कोई फोन लेता हूँ, iPhone 13। ये देखिए, प्राइस को कंपैरिजन करती हैं, अमेजोन पे कितने का बिक रहा है और बाकी जगह कितने में बिक रहा है। इस टाइप की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, राइट? जी। अब ये देखिए, ये जो है मुझे निकाल रहा है कई वेबसाइट से डेटा, और सिर्फ आज का डेटा नहीं, प्रीवियस डेटा भी दिखा रहा है, ये पिछले 6 महीने का डेटा। मैं कहता हूँ पूरा डेटा दिखाओ, जब से मोबाइल लॉन्च हुआ है। मोबाइल कब लॉन्च हुआ है? दिसंबर 2021 में, और अभी चल रहा है अगस्त 2024। अबाउट 3 साल। 3 साल से ये डेली कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन। ये कैसे काम करता होगा? ये कहीं जाता होगा, ये कोई, इसमें कोई पर्सनल कोई आदमी है जो जाता है इन वेबसाइट्स पे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और लिखता है? तो एक प्रोडक्ट की तो कर सकता है, इतने सारे प्रोडक्ट की कैसे कर पाता है? इसमें तो मेरे हिसाब से ये जो सॉफ्टवेयर होगा, हम्म, ये इनके बिलिंग सॉफ्टवेयर से मतलब सिंक होगा, तो जो भी हाँ, बिलिंग होती होगी उस हिसाब से डेटा उठा लेता होगा। ये काम amazon फ्लिपकार्ट कभी नहीं देगा किसी को, है ना? अगर जी आप पूछेंगे किसी को तो वो तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा कि हम कितने में किसको सही बेच बात। रहे हैं। तो वो तो देगा ही नहीं कभी। इस केस में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लाइव डेटा की इंफॉर्मेशन को। अभी अमेजोन पे क्या प्राइस है, आप उसका डेटा ले सकते हो। इसको हम कहते हैं डेटा हम्म स्क्रैपिंग। आपको इस वेबसाइट से, इस पेज से डेटा करना है कलेक्ट, आपको कहीं और से करना है। जब तक कोई पेज स्पेसिफिक सिक्योरिटी नहीं लगाता है, तब तक आप डेटा स्क्रैप कर सकते हैं नॉर्मल कोडिंग करके। ये आपका होता है पाइथन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डेटा स्क्रैपिंग। ये है पब्लिक सोर्स ऑफ डेटा, क्योंकि पब्लिकली हम्म अवेलेबल प्राइस, है ना? तो मैं लैपटॉप्स के फॉर एग्जांपल, एक मेरे अभी 1 महीना पहले जो है, हमारे मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट का सेशन चल रहा था। उसमें ये हम्म कंपनी ने असाइनमेंट दिया था कि आप निकाल के दिखाइए 1500 लैपटॉप्स का डेटा स्क्रैप करके वेबसाइट से, और उसकी एनालिसिस करके आप दिखाइए। दैट वाज देयर हम्म। प्रोजेक्ट जो उन्होंने दिया था। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो एक होटल चेन है, इसका नाम है फैब होटल्स। आप बुक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, फैब होटल्स। हाँ। उन्होंने किया था जो एप्लीकेशन बनाने को, वो था यही रेज्यूमे पार्सर वाला। हितेश, दैट यू वर सेइंग, इट वाज फॉर कॉलेज फ्रेशर। जो कॉलेज के फ्रेशर स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर के, उनकी प्लेसमेंट में ये पूछा था करने के लिए।
तो अब आप देखिए कि ये एप्लीकेशन ड्रिवन जो चीजें है ना, ये पब्लिक डेटा को समझने की है। कैन यू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन और नॉट फ्रॉम वेबसाइट्स। आपको मान लीजिए डेटा मिल गया, अब ये डेटा कहीं ना कहीं आप लोड तो करोगे ना। पहले कोई आपको टूल चाहिए जहां आप डेटा को ये लोड करें। इसको हम कहते हैं स्टेजिंग टूल्स। यहां आपके पास दो ऑप्शन है। एक स्टेज करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन को आपने एक पाइप बनाया है फॉर स्टेजिंग, और पाइथन के थ्रू अब आप उसको डाल सकते हैं एक्सेल में, उसको आप डाल सकते हैं अपने डेटाबेस में, उसको आप डाल सकते हैं कोई बीआई टूल में जैसे पावर बीआई या टैब्लो में। ये एक वे है स्टेजिंग करने का। दूसरा वे होता है कि पाइथन की जगह आप टूल का कोई यूज करें। जैसे ईटीएल की हमारी पाइपलाइंस बनती हैं, विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई हम बना सकते हैं या कोई भी बना सकते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, पाइपलाइन टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टूल्स हैं लाइक इन्फॉर्मेटिका है और बाकी चीज है, और फिर उसके बाद फिर पाइथन में लोड करके हम बाकी काम करते हैं। अच्छा सर, इसमें बताइए, इसमें जो ये जीरा नमपाई वगैरह ये सब किस में आता है? ये भी क्या मतलब ये लैंग्वेज है या ये कोई दूसरा नहीं, कोर्स है? नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है। जितना भी अच्छा अच्छा। मैथ्स का काम होता है ना, न्यूमेरिकल पाइथन है नमपाई। जी जितना भी मैथ्स का कैलकुलेशन है जो 100 लाइन जी। का, उसमें एक एक लिखा हुआ फंक्शन है। आपने उठाया हम्म कर दिया, आपको बस उसको लिखना है। अब क्या था देखिए, अगर आप 1.5 साल पहले मुझसे मिलते तो मैं कहता नमपाई को आपको थोड़ा बहुत फंक्शंस पता होना चाहिए। आज के डेट में हम्म मैं कह रहा हूं आपको कोई फंक्शन नहीं पता होना चाहिए, हम्म आपका काम हो जाएगा। क्यों? हम्म क्योंकि अब सारे एप्लीकेशंस जो हम लिखते हैं ना, वो एआई जनरेटेड है। हम उस पर सिर्फ हम्म अगर सही कमेंट लिख दिए कि हमें करना क्या है, वो कोड आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा, रियल टाइम में देगा। तो नमपाई जो है एक तरह का पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू नंबर हम लाते हैं। अब ये जो स्टेज हम्म हम कर रहे हैं ना, डेटा ला रहे हैं, ये हम करते हैं टूल में जिसका नाम है पांडास। वो भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की। अब हम्म इस पे थोड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, वो भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं मैट प्लॉटलिब। एक है सीबॉर्न, एक है प्लॉटली। सब लाइब्रेरीज है, सब में हजारों फंक्शंस हैं, कोई फंक्शन याद नहीं रखना। अच्छा सर, वो कहाँ से यूज हो, वो कहाँ पे करेंगे जो आजकल जैसे पहले जो चार्ट्स वगैरह आते थे या कोई स्लाइड वगैरह आती थी तो नॉर्मल स्लाइडें होती थी। अब वो हम्म बड़ी डिजाइनर स्लाइडें, रंग बिरंगी, बड़े वो पहाड़ नकली, मतलब अजीब तरह से। और वो कॉपी पेस्ट तो करके आप डेटा उठा सकते हो कॉपी पेस्ट, लेकिन अपने डेटा पे जब आप उसको पुट ऑन करते हो तो वो सिस्टम ही चेंज हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने एक बार स्लाइड बनाई थी, अभी मेरा लास्ट ईयर एक प्रेजेंटेशन था मेरी इसी कंपनी हम्म में एमडी के साथ, तो सभी को देना था, तो मैंने भी प्रेजेंटेशन दिया। तो मैंने अपने हिसाब से जो काम किया था वो मैंने दिखाया कि हर चीज में मेरा 125-150% का अचीवमेंट है अलग अलग चीजों में। अब उन्होंने किसी एनालिस्ट को बुलाया जो कि आईआईएम से पढ़ा था और कुछ उसने जो भी कोर्स वगैरह किया होगा, मेरा डेटा उसने अपनी उसमें पेन ड्राइव में लिया और उसके बाद उसको 5 मिनट के बाद जब लगाया तो जो मैंने ग्राफ्स ऊपर की तरफ दिखाए थे वो सारे नीचे हो गए। अब हम्म जो मैं खुश होके यहाँ से गया था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, बड़ी मतलब सब तारीफें कर रहे थे पहले 20 मिनट में जब मैं बोल रहा था। उसके बाद हम्म। तो उन्होंने मुझे 1.5-2 घंटे तो ऐसा लताड़ा, मुझे तो लग रहा था मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने डेटा दिया था वो पता नहीं हाँ। क्या डेटा था कि उन्होंने वो मतलब किया उस डेटा पे क्या किया कि वो जो मैं अपने हिसाब से तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, उनके हिसाब से ज्योग्राफी के हिसाब से सब काम उल्टा चल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर अब क्या बोलता है, हमने कहा चलो ठीक है, जान बची, नौकरी अभी बची, आगे देखते हैं। ये यही बात है। देखिए, अब यही परवेज ना, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हमें क्यों आनी चाहिए, यही बात मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, मैं जी अपने हिसाब से करूंगा, पावर पॉइंट में कुछ बनाया हमने। जी ये पावर पॉइंट का डेटा होता है स्टैटिक, ये चेंज हो जी जाएगा। लेकिन अगर मैं जी इसको लाइव बना दूं वेबसाइट पे, जी तो मेरे को दिखे या आपको दिखे, एक ही चीज दिखेगी, है ना। जी यही काम होता है जी हमारा पाइथन के थ्रू, बाकी जो टूल्स है ना, पावर बीआई जैसे।
जी ये क्या होता है, ये लाइव डेटा पे काम करते हैं। अभी मेरा एक नोएडा के कॉलेज में प्रेजेंटेशन था, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ की फैकल्टीज को ट्रेन करना था। उनको जो है यही था कि उनका जो रिसर्च वगैरह की उन्होंने कुछ बात बताई कि हमारा ये चल रहा है और उस पर करना है। ना ठीक है, उनका एक वैसे ही बनाया मैंने खुद, आपको दिखा दूं। और उसको डायरेक्टली पावर बीआई पे मैंने वो बनाया था, 5-10 मिनट में बनाया और उसको जो है डाला पीपीटी पे। वो पीपीटी पे लाइव डेटा गया, लाइव डेटा जो पावर बीआई था। पावर बीआई में डेटा आ रहा था एक्सेल के थ्रू। अब क्या है कि एक्सेल की फाइल पावर बीआई से कनेक्टेड है, पावर बीआई सर्वर पे है और उस सर्वर से मेरे पीपीटी पे। अगर मैं एक्सेल में डेटा चेंज करूं तो वो पावर बीआई चेंज होगा, और पावर बीआई चेंज होगा तो मेरा पीपीटी चेंज हो जाएगा। ये लाइव सर्वर की बात थी, तो 3 बार मुझे प्रोफेसर्स ने पूछा ये लाइव डेटा है, ये लाइव डेटा है। लाइव डेटा है तभी दिखा रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है, लोग लाल पीला काला भी बहुत काम करते हैं, बट उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम ये बात समझें कि काम कैसे हो रहा है। जस्ट एक मान लीजिए कि ये मेरा सारा बनाया हुआ रिपोर्ट है और कुछ का डैशबोर्ड भी होगा। ये मेरा रिपोर्ट है सैंपल, और ये है ऑनलाइन app.powerbI.com। ये बनाया है मैंने डेस्कटॉप पे, इसको पुश कर दिया। ये कोई मूवी एनालिसिस थी, है ना, IMDb है ना जिसपे सारी रेटिंग्स रहती है मूवीज की। अब ये कोई चार्ट बना है, ये देखिए एक्टर्स के हिसाब से अलग होगा, एक्ट्रेसेस के हिसाब से अलग होगा, ईयर वाइज जो मूवीज आ रही हैं उनका कितना रेवेन्यू है, कलेक्शन है ना। ये पूरा इंटरैक्टिव है। इंडिया का क्या हिसाब है, टर्की का क्या हिसाब है, USA का क्या है, ये देख रहे हैं, कंप्लीटली इंटरैक्टिव। ये एक पेज रिपोर्ट का। इसी तरह सेकंड पेज है। अब यहाँ भी मुझे मैप ऑन करना होगा, ये पूरा मैप के वैल्यू बताएगा कि कॉमेडी में टॉप रेटेड मूवीज कौन सी हैं, क्राइम में कहाँ है, और वो किस जगह पे वो मैप में दिखा देता। वो ऑन करना होगा मुझे। इसी तरह डायरेक्टर्स का टैब का था, बेसिक रैंकिंग किसकी थी, टॉप डायरेक्टर्स इन कॉमेडी कौन है, एक्शन कौन है ना, उनकी कौन सी लैंग्वेज ऑफ चॉइस है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये होम पेज है मेरा बना हुआ, ये 5-10 मिनट में बन जाता है। इसको मैंने एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम एक्सेल में, PDF में, या पावर पॉइंट। मान लीजिए मैं पावर पॉइंट करता हूँ। यहाँ ये पूछ रहा है मुझसे लाइव डेटा एम्बेड करना है या सिर्फ इमेज करना है। अब मैंने लाइव डेटा एम्बेड कर दिया, इसको पावर पॉइंट में खोल देते हैं। ये पावर पॉइंट में डेटा आ गया लाइव, ये लाइव लोड हो रहा है डेटा पावर बीआई का। अब देखिए, अब मैं जो प्रेजेंटेशन दूंगा इसमें ये सारा जो डेटा है ये लाइव डेटा है, विथ फिल्टरेशन, विथ रिफ्रेश ऑप्शन, है ना। अब यहाँ भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे वहां कर रहा था वेबसाइट पे। तो अब मैं प्रेजेंटेशन देते हुए भी मैं उसको एनालाइज करके विजुअलाइज करके बता सकता हूँ। ये जो काम होता है ना, ये जरूरी है करना। लाइक ये पहले था कि प्योर टेक्निकल लोग करते थे, अब ये हर कोई करेगा। अब ये हर किसी को आना चाहिए। ये सारी जो चीजें ये होती हैं डेटा एनालिसिस, ये प्योर डेटा एनालिसिस है। इसमें कोई प्रिडिक्ट हम तो कर नहीं रहे आगे क्या होगा, है ना। ये डेटा एनालिसिस है। लेकिन अगर हम प्रिडिक्ट करने जाएं कि आगे क्या होने वाला है इस रिपोर्ट, इस चार्ट को देखते हुए, तब हम डेटा साइंस में। एक एग्जांपल देते हैं, कोई मेरे पास सेल्स का कोई डेटा वेटा है। ये कैसा डेटा है मेरे पास, ये तो बहुत छोटा डेटा है। देखिए ये सेल्स का डेटा है, प्रॉफिट, नंबर ऑफ ऑर्डर एटसेट्रा, बट ये बहुत कम है। इस पे अगर मैं जाऊंगा करने तो मैं गलती रहेगा मेरी। इसकी जगह कोई और लंबा नहीं है सेल्स डेटा, फ्लिपकार्ट सेल्स डेटा फॉर एग्जांपल। ना 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 ना, ये भी है। देखिए डेटा साइंस में हमारे पास डेटा ज्यादा होना चाहिए। इस पे मैं करूँ, हाँ ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। ये सेल्स डेटा देखते हैं। दिस इज फॉर डिफरेंट रीजन्स, कंट्री,
उनका आइटम टाइप, सेल्स का क्या चैनल है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ऑर्डर की प्रायोरिटी क्या है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, शिपमेंट डेट, यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस, मेकिंग कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मान लीजिए कि मेरे पास ये इतना डेटा है विच इज लाइक हाउ मेनी 5000 का कुछ 5000 रोज है। हितेश, नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? कनेक्ट, अभी हम कनेक्ट हैं हितेश? अच्छा ठीक है। मान लीजिए कि ये सारा डेटा है, अब मुझे प्रॉफिट को आगे प्रेडिक्ट करना है। ये 5000 के बाद अगर कोई नया आया रिकॉर्ड मेरे पास, यहां तक के रिकॉर्ड के बाद कोई नया रिकॉर्ड मेरे पास आए, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकूं पहले ही कि उसकी कितनी प्रॉफिट या कितनी लॉस होगी। आई वुड वांट टू प्रेडिक्ट। ये काम जो होता है ना, ये होता है डेटा साइंस में। एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर आपने यूज किया है कुछ इस टाइप की डेटा एनालिसिस के कुछ पैक को, कभी यूज किया है? नहीं। नहीं, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। एक तो इसमें नॉर्मली हम ना मूविंग एवरेज एनालिसिस इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। कुछ प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं, इसमें होता है रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल, इसमें पूछता है कि मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है, तो मुझे प्रेडिक्ट करना है ये वाला N12। ये मेरे पास y का रेंज है, ठीक है। x का रेंज डिपेंडिंग अपॉन किसके प्रेडिक्ट करना है, मान लीजिए टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, या ये सबके मिला के मैं कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट सोल्ड, यूनिट सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट, ठीक है। I2M। इनका मुझे एक लाइन फिटिंग प्लॉट और एक रेसिडुअल प्लॉट बना के दे दो। नॉन न्यूमेरिक डेटा है, आई थिंक यहाँ कुछ मिसिंग डेटा। देखिए अब डेटा क्लीनिंग मैंने नहीं की है ना, मिसिंग डेटा है इसलिए नहीं हो रहा। 1 मिनट, इसमें हम देखते हैं। चलो छोड़िए, इसको M से ही कर देते हैं। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पे हमने सही लिया था ये डेटा, ये लेबल्स का डेटा है, राइट। इसमें लेबल है, M की जगह मैं L कर देता हूँ। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट के हिसाब से टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। ओके कर लीजिए, ये इसने मेरा सारा वैल्यू बना के दे दिया। क्या मेरी प्रिडिक्शन है, क्या वैल्यू है, क्या सिस्टम है उस पर। अब देखिए, ये टोटल कॉस्ट टू प्रेडिक्टेड टोटल प्रॉफिट की ये लाइंस बना दी कि अगर मेरा टोटल कॉस्ट इतना होगा तो आगे प्रॉफिट कितनी जाएगी। ये लाइंस बनी हुई है, ये पॉइंट्स वैल्यू। नाउ बिकॉज दिस पर्टिकुलर वन इज शोइंग अस अ वेरी क्लियर फिगर, इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट लोकेटेड इन सारे वैल्यूज में। अगर टोटल रेवेन्यू लाइन फिट प्लॉट और कॉस्ट प्लॉट, अब देखिए कॉस्ट उतना अच्छा नहीं फिगर मेरा दे रहा है, क्योंकि कॉस्ट इज शोइंग कि मेरा जितना कॉस्ट बढ़ेगा उतना जो है आपको क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू घटेगी। इस वैल्यू पे फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट ए ट्रेंड लाइन विच इज लीनियर इन नेचर। ये मेरी प्रेडिक्टिव लाइन है। इस प्रेडिक्टिव लाइन को मैं अलग अलग टाइप का कर सकता हूं। स्ट्रेट लाइन चाहिए, लीनियर रिग्रेशन, logarithmic regression, polynomial regression of certain order. Depending upon my data, I can put all these particular lines as per my request. इस लाइन का मुझे कोई इक्वेशन मिल जाए। आइए इस इक्वेशन को समझ लो। ये मेरा नीचे इक्वेशन, -6e-16x प्लस 2e -0n। ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा डेटा का है। अगर मैं इसको इक्वेशन यहाँ सीधा सीधा समझूं, जो कि सीधी लाइन, से फॉर एग्जांपल लेट मी हैव ए ट्रेंड लाइन बेस्ड अपॉन टोटल प्रॉफिट। ये ऐसी लाइन है, टोटल प्रॉफिट मेरा, अगर टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो टोटल प्रॉफिट इस तरह से जाएगा। इसका इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। ये मुझे चाहिए आर स्क्वायर वैल्यू और इक्वेशन ऑन द चार्ट। ये पढ़िए, ये इक्वेशन देखिए, ये क्या दिखा रहा है, 0.2664x प्लस 1 लाख, और इट इज लाइक 1,44,110।
ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू m ऑफ x प्लस c। c इज एनी कांस्टेंट वैल्यू जहां पे ये इंटरसेप्ट करती है लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये मुझे 64.08% प्रोबेबिलिटी से करेक्ट स्टेटमेंट देगी। मतलब अगर मेरे पास अभी जो वैल्यू है वो 5 लाख तक का है और 50 लाख तक का है, ये 50 लाख अगर मेरा कॉस्ट होगा तो मेरी प्रॉफिट क्या होगी। मान लीजिए मेरे पास एक कोई नया डेटा आता है जो 60 लाख का है, 70 लाख का है, उस पे मेरी क्या प्रॉफिट होगी वो मैं निकाल सकता हूं यहां से। ये पॉइंट ऐसा है कि जो कहीं आपको नहीं दिखेगा। मान लीजिए कि 70 लाख पे मेरी क्या प्रॉफिट होगी। हम्म ये अगर 70 लाख पे है तो क्या प्रॉफिट होगी, ये हम निकाल सकते हैं कैसे। कि 18 लाख प्रॉफिट होगी अगर मैं 70 लाख का प्रोडक्ट बेचूंगा तो आगे फ्यूचर में। जो डेटा अभी मेरे पास 50 लाख तक का है, बट मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ 70 पे क्या होगा, 80 पे क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस लाइन। ये होती है मशीन लर्निंग की प्रेडिक्शन। अब ये देखिए, इसमें कोई टूल नहीं चाहिए। इसमें आपको ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये आपको खुद से नहीं निकालना है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू m ऑफ x प्लस सी। m होता है स्लोप, c होता है कांस्टेंट वैल्यू। स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 विच इज द स्लोप वैल्यू। इट इज ऑल्सो tan थीटा। ये निकालना नहीं है क्योंकि ये तो निकाल के बता दिया आपको। m का वैल्यू क्या है 0.664, c का वैल्यू क्या है ये। अब आपको पता होना चाहिए बस कि ये स्ट्रेट लाइन का ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। वैल्यू तो निकल गया। पॉइंट ये है कि आप आगे फ्यूचर पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कि आगे अगर मान लीजिए मैं 1 लाख के ऊपर डेटा रखूं, 0.664x प्लस इतना, तो क्या होगा y का वैल्यू, मतलब मेरी प्रॉफिट क्या होगी। और मैं कितने परसेंट श्योर हूं इस बात पे। आई एम श्योर, लाइक 64% श्योर हूं कि ये इतना ही होगा। आगे पीछे कुछ हो सकता है। ये काम जो है मशीन लर्निंग का है, डेटा साइंस का है। डेटा साइंस को हवा बना दिया है लोगों ने। ये काम है समझने का। अब ये समझिए कि जिसको पता ही नहीं हो कि कॉस्ट कैसे निकल रहा है, फैक्टर प्रॉफिट में क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, वो कितना भी अच्छा मैथ्स जान रहा हो, वो इसका यूज तो कर ही नहीं पाएगा। सही बात। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी मैथ का पता हो और उसको ये समझ में आता हो कि कॉस्ट प्रॉफिट का रेशियो कैसे होगा, हम कितने कॉस्ट तक बेयर कर सकते हैं कंपनी में, कितना प्रॉफिट हमारा टारगेट है, हमें उस टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या करना है, दे कैन नाउ यूज दिस पर्टिकुलर डेटा वेरी वेल। वो मैथ्स का इक्वेशन सीखना आसान है, ये सीखना आसान है। इसकी लॉजिक समझने में एक्सपीरियंस चाहिए। सो माय पॉइंट इज सिंपल, डेटा साइंस का एप्लीकेशन में आप आइए। मैं सिलेबस मैंने जो लिखा है ये इतना ही, इसको एक बेसिक पॉइंट पे बस खत्म कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 7 महीने का प्रोग्राम है, 7 मंथ्स। इसमें हम कोर पाइथन पे स्टार्ट करते हैं। बेसिक बात करते हैं कि पाइथन की कोडिंग कैसे होती है। इसमें हम कुछ एआई टूल्स का यहाँ भी हेल्प लेंगे टू मेक इट लाइक वेरी सिंपल। इसके साथ हम यहाँ देख लेते हैं लाइब्रेरीज का। अब लाइब्रेरी क्या है ना, ये ऑटोमेटिक आपको बताएगी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एरर है तो क्यों है। सेकंड हम देखते हैं इसके बाद एसक्यूएल का। डेटा बेस कैसे बनेगा, डेटाबेस में लोड कैसे होगा डेटा, यूजिंग सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक माई सीक्वल। इसके बाद अब हम जो स्टेटिस्टिक्स है ना, ये स्टेटिस्टिक्स वैसी स्टेटिस्टिक्स नहीं जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं। ये स्टेटिस्टिक्स कहलाती है समथिंग कॉल्ड एज इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल क्या है, प्रेडिक्ट करना। अगेन मानिए कि मुझे पता करना है लखनऊ में कितना ट्रैफिक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पूछने जाऊं कि कितना आपको टाइम लगता है, कितना ट्रैफिक है। डिफिकल्ट है ना करना। मान लीजिए कि मैंने 100 लोगों से सर्वे किया, आपको कितना टाइम लगता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पहुंचने में। और वो जो है प्राइस मैंने एक नोट कर ली एक एक्सेल शीट में, 100 पीपल का, 100 लोगों का सर्वे। इस 100 लोगों के सर्वे पे मैं एनालिसिस करूंगा और प्रेडिक्ट करूंगा कि पूरे लखनऊ में कितना टाइम लगता होगा।
यानी कि मुझे प्रेडिक्ट करना है आगे का बेस्ड अपॉन स्मॉल डेटा। एक है मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल और मैं कर रहा हूँ, दूसरा है मेरे पास थोड़ा बहुत डेटा है और उसके बेसिस पे मैं बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। दैट इज इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, वो हमें पढ़ना है। ये आता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। यहां करने के बाद हम बनाते हैं सम हाइपोथेसिस कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। इसके बाद अब हम काम करते हैं यहाँ पे अपने टूल्स पे, जिसमें हमारा बेसिक स्टार्ट होता है मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का, या बिफोर मशीन लर्निंग जो है। मैं यहाँ पे टूल की अगर हम बात करें तो हम यहीं पे पावर बीआई और टैबल्यू दोनों देख लेते हैं। देखिए पावर बीआई या टैबल्यू एक भी आपको अच्छे से आता है ना, तो दूसरा इज लाइक सेम, सेम टू सेम। आपको पता होना चाहिए कैसे होता है काम। एंड पावर बीआई टैबल्यू, इसमें कोडिंग नहीं है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, किसमें क्या चार्ट यूज करना है बस। पावर बीआई टैबल्यू होने के बाद ये हमारा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिक्स का पार्ट। और अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट में, दैट इज आवर एआई पार्ट। सर एआई जो ये पार्ट, वाला आपने ये बताया है, मतलब जितनी चीजें अभी लिखी हैं, ये टोटल कितने दिन में हम कवर करेंगे? ये इतना तो हम कर लेंगे 2.5-3 महीने में। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद अब हम एआई का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उस पर स्टार्ट करते हैं, मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। इस मशीन लर्निंग में हम 3 तरह की चीज देखते हैं। वन इज रिग्रेशन, जो मैंने अभी किया, जैसे एक्सेल में रिग्रेशन हो जाता है। बट जी। इसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन। मान लीजिए मुझे करना है, ईमेल्स होते हैं ना हमारे, स्पैम स्पैम होते हैं, नॉट स्पैम होते हैं, वो कैसे होगा। किसी को मुझे सक्सेस बताना है, किसी को फेलियर बताना है, वो कैसे होगा। ये होता है क्लासिफिकेशन। और लास्ट वाला होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का क्या है एप्लीकेशन। मान लीजिए अभी मैं Amazon पे कोई प्रोडक्ट ऐड करूं तो वो बताएगा ना, यू शुड आल्सो ऐड दीज प्रोडक्ट्स। हाँ, पीपल आल्सो बाय दीज प्रोडक्ट्स। जी। ये होता है एमबीए में, आपने सुना होगा नाम, मार्केट बास्केट एनालिसिस, कि और क्या क्या प्रोडक्ट्स हम जोड़ सकते हैं। वही होता है क्लस्टरिंग। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी कैन डू। यूट्यूब पे वीडियोस जो रिकमेंड होते हैं, नेटफ्लिक्स पे जो वीडियोस रिकमेंड होते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम जो होता है वो पूरा क्लस्टरिंग पे चलता है। आपकी वॉच हिस्ट्री देखी, अब आपको उससे जुड़ी हुई चीज को जोड़ना है, ये होता है क्लस्टरिंग। ये मशीन लर्निंग में हो जाएगी। मशीन लर्निंग काम करता है सिर्फ मैथमेटिकल नॉर्मल एक्सेल डेटा पे। आपको अगर डेटा इस टाइप से मिल रहा है तब आप कर लेंगे, बट वैसे नहीं मिला तो आपको ईमेल्स करना है, या अमेजोन का जैसे मैंने दिखाया टेक्स्ट में किसी ने फीडबैक लिखा है, उसको एनालाइज करना है, वो कैसे करेंगे। या फिर द पॉइंट वुड बी लाइक कि अगर हम ये चैटबॉट्स का हमें करना है तब कैसे करेंगे। वो होता है एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। वहां स्टार्ट होता है इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए डीप लर्निंग। इस डीप लर्निंग में हम बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, विच इज लाइक ह्यूमन बीइंग का जो होता है ना नर्वस सिस्टम, सेम टू सेम। 3 तरह के नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यही कॉन्वोल्यूशनल एआई है। नेटवर्क, हाँ ये एआई में, हाँ, जी। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये हम बनाते हैं ताकि हम उस चीज को बहुत आसानी से समझ सकें। देखिए इमेज सबसे ज्यादा हेवी होता है, राइट। 8-10 MB की तो हम सेल्फी ले लेते हैं, है ना। 8-10 MB में कितने ही एक्सेल फाइल्स आ जाएंगी आपको पता है। अब उसको हमको समझना है, उसके लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। ये हमारा काम बताता है। CNN हमारा पर्टिकुलर जो काम बताता है वो होता है इमेज के लिए। इसको इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। कॉन्वोल्यूशनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पर्टिकुलरली काम करते हैं टेक्सचुअल एनालिसिस के लिए। और ANN पर्टिकुलरली यूज करते हैं कॉग्निटिव साइंसेस के लिए। कॉग्निटिव साइंसेस यानी जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं ना किसी चीज को समझा के कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, उससे रिपीट करवाते हैं और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं उसको आगे। यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम करते हैं। इन तीनों चीज के साथ
अब हमारा जो वैल्यू है वो नॉट बेस्ड ऑन सिर्फ एक्सेल टाइप की शीट्स का है, बट अदर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, पीडीएफ डेटा, इमेज डेटा, इस टाइप की डेटा को हम ले रहे हैं, ऑडियो डेटा एक्सेट्रा। ये होता है एप्लीकेशनल पार्ट। और ये करने के बाद अब हम जो लास्ट वैल्यू देख रहे हैं आज, वो होता है जेनरेटिव एआई। यहां हम पढ़ते हैं दो चीज इंपॉर्टेंट, देखते हैं मॉडल्स जिनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। जीपीटी मॉडल, जेमिनी मॉडल्स, बार्ड मॉडल, ये सब ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं। और हम देखेंगे इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, इनका कैसे हम यूज करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे, ये काम। ये हमारा अगला 3 महीना से 4 महीना चलेगा। ये जो है 2.5 महीने में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया पे स्पेसिफिक हो जाए। हम चाहेंगे कि आप सब करें। आपको जब एक बार पूरा ओवरऑल एआई का जर्नी समझ में आ जाए, अब आपके ऊपर है, आप अपना डिसाइड करें। इसके साथ इस प्रोग्राम में होती है 2 महीने की इंटर्नशिप, जो कि एक यूएस की कंपनी है हमारी, उसके साथ टाई अप है। उनके पास होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। रियल वर्ल्ड का जो कोई डेटा है उसके बेसिस पे 2 महीने की इंटर्नशिप है। वो इंटर्नशिप ऐसी नहीं है कि मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स वाली, कि हर किसी को मतलब 8 घंटे 10 घंटे बैठना है। वो एक दिन सेशन होगा संडे को होपफुली, उसमें वो बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है अगले हफ्ते तक, उसकी रिपोर्टिंग आपको देनी है 1 हफ्ते में। बट उसमें ये होगा फायदा कि आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे ड्यूरिंग दिस। इसके बाद तो सर बाकी जो इसमें हम लोग चीजें, कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे इसमें? देखिए हर टेक्नोलॉजी पे हम एक एक प्रोजेक्ट करते चलेंगे। जैसे पाइथन है तो कम से कम एक पाइथन पे करेंगे, लाइब्रेरी बेसिस पे करेंगे। एक चीज मैं भूल गया यहाँ, एक चीज होती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो 3 प्रोजेक्ट हम पाइथन पे कर लेंगे, एक एसक्यूएल पे कर लेंगे, एक स्टैटिस्टिक्स पे कर लेंगे, एक पावर बीआई पे, एक टैबलू पे। हाइपोथेटिकल टेस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं होता। मशीन लर्निंग में हर एक पे एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, डीप अच्छा लर्निंग सर, में बनाएंगे। ये जितने प्रोजेक्ट हम करते हैं क्या इसका कोई सर्टिफिकेशन भी मिलता है? इसका बेहतर सर्टिफिकेशन है आपकी प्रोफाइलिंग। हम एक रखते हैं जगह जिसका नाम है गिट हब, नाम सुना होगा, जी, गिट हब। नहीं सुना है। अच्छा ठीक है, ये गिटहब जो है एक जगह होती है जहां आपके सारे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना वो रखाते हम्म। हैं। फॉर एग्जांपल संदीप का होगा हमारा, मान लीजिए कि ये, अच्छा मेरा एक स्टूडेंट का मैं निकाल रहा था वो नहीं निकला। मान लीजिए कि ये किसी का है, साद पास्ता नाम का, ये इस लड़के का, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसका जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो यहाँ पे रखे हुए हैं। कोई भी हम्म। अब जब टेक्नोलॉजी मैनेजर आता है वो देख सकता है कि हाँ इनके ये प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने जावास्क्रिप्ट पे काम किया है या किसी चीज पे काम किया है। ओके, इज फ्रॉम कराची पाकिस्तान। अब ये प्रोजेक्ट हम उठा के देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऑसम वेब कंपोनेंट क्या है, कैसे है, इसमें कौन कंट्रीब्यूटर है ना, इसका कोड हम उठा के देख सकते हैं, इन्होंने कैसे लिखा है, ब्लॉक कार्ड्स कैसे बनाए हैं, ये इमेजेस कैसी आई हैं। ये काम हमारा होता है। जहां तक सर्टिफिकेशन की बात रही, इसमें आपको 2 जगह तो सर्टिफिकेट मिलेगा कम से कम, एक ब्लू कार्ड के साइड से, एक इंटर्नशिप के वाले साइड से। इसके अलावा हम्म। बाकी जो है ना, मैं आपको 4-5 जो है कंपनीज का भी दे सकता हूँ, जो फ्री होता है करना। और इसके अलावा अगर हम्म। आप कंपटीशन कुछ देके, एग्जाम देके पास करना है, तो वो भी हो सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना पावर बीआई का सर्टिफिकेशन, वो फोर्टी एट हाँ, हंड्रेड माइक्रोसॉफ्ट का है, विप्रो का है। हाँ नहीं, विप्रो वगैरह का अलग है वो सब जो है ना, क्या है कि वो अच्छा। आप पढ़िए आपको सर्टिफिकेट मिल गया। माइक्रोसॉफ्ट वाला जो मैं हम्म। बोल रहा हूँ उसमें एग्जाम पास करना पड़ेगा आपको। जैसे ये हम्म। PL 300 पावर बीआई के लिए, ये मेरे साथ हम्म। 4-5 लोगों ने दिया था। हम एक लोग का, 2 लोग का निकलता है, बाकी 4-5 फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 70% पासिंग मार्क्स। और इसमें मानते हैं कि वो आपको मतलब इतना आना चाहिए कि आप ये काम कर पाते हैं, असेस योर नॉलेज वगैरह करना है। यूएस में $165 का ये एग्जाम है, इंडिया में ₹4800 प्लस सम जीएसटी है। इसकी आप तैयारी करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। इसकी हम्म। सर्टिफिकेशन की कुछ वैल्यू, जो कि आप पढ़ के इसको एग्जाम पास करके होता है। बाकी देखिए सर्टिफिकेट आपके एक्सपीरियंस के लिए उतने रिक्वायर्ड है नहीं। सर मुझे देखिए, मुझे सर्टिफिकेट की तो
अब नॉलेज है नहीं सर, क्योंकि आज तक मुझसे मेरे एमबीए की डिग्री सिर्फ ज्वाइनिंग के टाइम मांगी जाती है, जब किसी बस कंपनी में वही ज्वाइन करो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यही मेन बात बात है। ये है कि सर देखिए आप मैं क्योंकि आपको नॉलेज हम मुझसे ज्यादा है, तो मैं आपको सर कह रहा हूँ, डोंट टेक मी नहीं अदरवाइज, नहीं, क्योंकि प्लीज कॉर्पोरेट आप में नाम सर नाम लीजिए। लेते हैं। नहीं नहीं, वो आप ठीक है, क्योंकि आप सर मेरे हिसाब से जो सिखाता है तो वो ऊपर ही रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये है सर कि बात ये है कि सर जैसे अभी मेरी एज जो है 38-39 है। अब मैं उस फेज में हूँ कि बस मैं मतलब आधी जिंदगी से आधी ज्यादा जी चुका हूँ, अब बस रिटायरमेंट की तैयारी आदमी कर, भाई 60 साल में सरकार रिटायर करती है, तो ऑब्लिगेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। और इस टाइम पे अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है मेरे मोनोटोनस लाइफ हो गई है सिंस लास्ट 14-15 ईयर से, वही पहले डायरेक्ट सेल्स, फिर चैनल सेल, टीम हैंडलिंग और सारा चीज, मतलब जितना सेल्स का होता है वो सब मैंने कर लिया। और जिस हिसाब मुझे लगता है कि जो मेरा, क्योंकि मैंने डाउन द लाइन 2008 में एसएपी किया था, तो अच्छा। एसएपी में वो खाली मैंने एप्लीकेशन पार्ट किया था, तो शुरुआत में तो याद रहता है जब आप करते रहते हो सिस्टम पे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और एसएपी मुझे पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में जब मैंने किया था तो बहुत टफ था, कुछ ज्यादा ही टफ था। ऑलमोस्ट मतलब उन्होंने 3-4 कॉपियां वॉपियां लिखवा दी थी एप्लीकेशन, और वो बहुत इधर उधर बहुत नाचना पड़ता था। जितना आपने बताया है उस हिसाब से तो मुझे बड़ा आसान लग रहा है ये चीज करना। और आज तक मैंने इतने वेबिनार अटेंड किए, सब कहते हैं ये सर्टिफिकेट देंगे वो सर्टिफिकेट देंगे, इतना कठिन बताते थे कि बाद में तो वेबिनार अटेंड करने के बाद मेरे चक्कर आ जाता था, तो मैं लेता ही नहीं था। स्केलर का भी मैंने अटेंड किया था वेबिनार, तो मुझे ये स्केलर मतलब दे आर चार्जिंग समवेयर अराउंड 2.75, उससे ज्यादा ही के आसपास वो चार्ज साढ़े तीन करते हो हैं। जाता है वो हाँ, 3.5 अब जाता वो है। वही पहले वो मतलब 2.70 से वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब ग्रेड का भी आसपास है उसके, और सबसे ज्यादा तो हीरो वायर्ड का है। लेकिन मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन रहता है कि ठीक है चलिए, आप मुझे फ्रेशर कंसीडर कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि मैं 5 लाख रुपए सैलरी पे आ जाऊंगा, फिर आई हैव टू वेट अनदर फॉर लाइक से फॉर 2-3 इयर्स के, हाँ भैया अब आगे कुछ बढ़ना है। उसमें बड़ा चैलेंज रहता है सर। अब कहाँ से, मतलब खर्चे तो कम होंगे ही नहीं ना अब। बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर किसी कोई, देखिए बात यह है कि अगर आपकी 15 साल की मेहनत उसको जीरो कर दिया जाए, तो ये तो मतलब जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, सीधी बात है मेरी उसी कहना। बात है ना सर, बहुत सी जगह पे मतलब मेरा जब हो सकता है 6-7 महीने पहले ऑलमोस्ट मेरा कोर्स भी इतने टाइम तक कंप्लीट हो रहा होता, ये डेटा इज गुड से मेरे पास कॉल आई। उन्होंने सर 100% आप शर्त लगा लीजिए, आपका सारा डेटा, आपका सारा एक्सपीरियंस जो है काउंट होएगा। मैंने कहा सैलरी क्या मेरी मुझे मिलेगी, तो कह रहे एवरेज सैलरी सर 37-38 लाख रुपए का पैकेज होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने इतनी 15 साल से मैं सेल्स में हूँ और कोई मुझसे 3 गुना ज्यादा पैकेज की बात कर रहा है उस टाइम पे, जब मेरा उस फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर एक दूसरे आदमी ने मुझे कॉल करी, तो उससे मैंने कहा भैया वो तो 37 लाख का कोर्स बता रहे हैं, मतलब 37 लाख बता रहे हैं, चलो पढ़ लेंगे, 37 लाख की जगह 20 लाख हो सकता है मिल जाए, इससे कम क्या मिलेगा, इतना भी बेवकूफ मैं नहीं हूँ। तो उसने कहा भैया तुमको तो मैं 5 लाख की जॉब दिला पाऊंगा, कोर्स के पैसे होते ही थे। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो ये सब बड़ा गिमिक है, कोई फायदा नहीं इसको हाँ, करने से, वरना अब देखिए तक आप तो सर खुद मेरा सेल्स कंप्लीट में हैं, हो गया आप होता। जान रहे हैं टारगेट होता है ना। तो सेल्स जी। में टारगेट है, जो अच्छा बोल सर, ये क्लास कन्वर्ट आप ही करना है। पढ़ाओगे या कोई और पढ़ाएगा, मतलब आप ही लेंगे देखिए या सेक्शन या कोई देखिए, और लेगा? हमारे पास टीम है, छोटी जी। टीम है। अभी कोई बहुत, जी। मैं बोला ना कि देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यहाँ पे सभी लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं हम्म। काम करके आए हैं। लेकिन हम्म। हमारे पास जो टीम है वो अच्छी टीम है, सब एक्सपीरियंस लोग की टीम है। तो कुछ मैं नहीं, पढ़ा, मैं इसलिए कह रहा था जैसा आपने एनएलपी समझाया मेरा मुझे अच्छा है। हर चीज समझ आई। हाँ एनएलपी देखिए मेरा तो अच्छा है, लेकिन मेरा जी। कंप्यूटर विजन में अच्छा नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। उसके लिए हम किस जी। बात को बोलते हैं। अब जैसे मैं पावर बीआई हाँ। में मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मैं पावर बीआई पे काम करता हूँ, टैबल्यू जो है कोई और ले लेता है। हम्म। अगर कोई नहीं आता है कोई तो दिक्कत नहीं सर उसमें। ये यही बात है बस। तो ऐसे ये चलता है। अच्छा सर, ये जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट मंथ अगर सितंबर में एनरोल करते हैं, मतलब हम्म, सितंबर वाले बैच से, हम्म, तो मोस्ट प्रोबब्ली मार्च में कोर्स खत्म हो जाएगा। जी। तो
व्हाट आर द चांसेस कि हम लोगों को क्या कैसे मिलेगा। और देखिए मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं हूं कि मैं इसको मतलब इस फील्ड में बहुत बड़ा अपना करियर बनाऊं और यहाँ से वहां यूएस और अमेरिका, ये सब मुझे नहीं करना है। मुझे अपना काम करना है। तो कि जैसे अभी सर मेरी अजहर सर से भी बात हो रही थी, तो फ्रीलांसिंग वगैरह बताया था। तो हम्म, वो थोड़ा सा सर गाइड जरूर करिएगा, क्योंकि वो एक ऐसी इनकम होती जो आप बिट्स एंड पीसेस में भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा कमा सकते हो। यही तो मैं आपको बता रहा था शुरू में ही। देखिए मैं हिंट कर रहा था, मैं खुल के नहीं बोलता हूँ ये चीजें। एक्चुअली क्या होता है, हम्म। ये जो कॉरपोरेट में लाइफ है ना, वो 15 साल की है, सीधी बात। जी। 15 साल के बाद आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। या तो वो हम्म। मैनेजमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, मैनेजमेंट साइड हम्म। देखते हैं वो, या फिर वो हम्म। अपना कोई काम बाहर करते हैं। हम्म। होता क्या है कि अगर आपको आज के वक्त में उतर के काम करना है, तो हम्म। आज के चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी क्या है, काम क्या हम्म। है, और उस पे वर्क होगा कैसे आगे। हम्म। फ्रीलांसिंग का जो पोजीशन है ना, वो पहले जो था फ्रीलांसिंग, वो ये था कि आप गए और अपवर्क जैसे कोई जगह पे जाके कुछ लिखा, काम होने लगा। हम्म। वो नहीं है आज। आज क्या है सही कि बात। आपको क्लाइंट के साथ बात करना है, उसको एक सैम्पलिंग करानी है, उसको जो है अपना मतलब प्रोफाइलिंग करनी है। ये सब काम होने के बाद अगला काम होता है। अब हम्म। मान लीजिए कि आपको सेल्स की एक्सपीरियंस है, अब आप कुछ हम्म। भी देख सकते हैं ना। अब जैसे अजहर को मैं बता रहा हूँ, अजहर साहब जो है वो सेल्स हेड थे बायजूस में, उन्होंने हम्म। बताया होगा शायद आपको। नहीं ये नहीं बताया था। तो बायजूस ये में बता। वो थे, और बायजूस जी। में वो जो है यूपीएससी का जो वहाँ था ना, बायजूस में यूपीएससी का जो हम्म। सेल्स होता था, तो वो उसके जो है मतलब मैनेजर थे, और फिर बाद में सेल्स में और भी कुछ थे वो। तो अच्छे हम्म। 20 पैकेज पे थे वो, और बायजूस तो बहुत अच्छा चल रहा था। अब जब हम्म। उनको लगा कि यहाँ पे शिफ्ट करना है, मुझसे बात की, तो हम्म। मेरे पास 5-6 और ऑफर्स थे अच्छे। मतलब एक हम्म। ऑफर होता है कि इंडिया के जो मतलब साइंटिस्ट्स है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हम्म। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो लोग 3-4 ऐसे थे जो रिटायर हो रहे थे। उन्होंने हम्म। मुझसे करके कहा था कि हम साथ में करते हैं। अब वो बात मतलब 80% हो गई थी। पर जब हम्म। इनसे बात हुई तो मुझे एक डिफरेंस समझ में आया। इनको बेचने आता है, इनके हम्म। पास टीम है जो बेचने वाली है, दिमाग है करने हम्म। वाला। अब टेक्निकल हम्म। साइड में जो चीज है वो मैं ला सकता हूँ, अपनी टीम हम्म। में क्रिएट कर सकता हूँ, बट इनको हम्म। बिजनेस का पता है। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन बैठा। वहां क्या था, सब टेक्निकल टेक्निकल थे, काम नहीं हुआ। अब हम्म। देखिए, अगर जनरल तौर पे एडटेक बनाए, हम्म। तो उसमें इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है सिर्फ मार्केटिंग, और मतलब ये जो आपसे बात करने के लिए इनकी जो है ना, हम्म। इस एक कस्टमर को रिटेन, व्हाट व्हाट क्या वर्ड होता है, कस्टमर एक्विजिशन। एक्विजिशन, हाँ। हाँ, कस्टमर एक्विजिशन में। एक्विजिशन में जो कॉस्ट आता है, वो जी। टोटल रेवेन्यू का 40% होता है, एवरेज है एडटेक के प्लेटफॉर्म्स पे। स्केलर हम्म। और अपग्रेड में करीब करीब हजार हजार लोगों की टीम है, हम्म। मार्केटिंग सेल्स मिला के, हम्म। जिनका काम ही है ये काम करना। तो जी, अब सही बात। क्या होता है कि अगर हम ये काम करने जाए, तो फिर हमारे पास तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर चाहिए। हम्म। देखा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आएंगे एआई पे। हमारे पास एआई के जो जनरलाइजेशन है, एक आदमी 10 आदमी हम्म। का काम कर लेता है। तो हम्म। हमारे पास जो मार्केटिंग का, सेल्स का, अजहर के अलावा 2 लोग और हैं बस, वो हम्म। सारे काम हो जाते हैं। टीचिंग में हम बुला लेते हैं बाहर के लोगों को, पेपर मतलब क्या कहते हैं, क्लास, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो होते हैं हमारे पास, अच्छे हम्म। ग्रुप है। तो सैटरडे संडे खाली हम्म। हुए, उनको बुला लिया, 2 क्लास कराई। और वो क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो क्लास भी अच्छी होती है। तो उस हम्म। तरह से हमने काम किया स्टार्ट। तो अभी देखिए कि ठीक ठाक है हमारा, हम्म। मार्च से लेके अभी तक कुछ नहीं तो 150-200 के ऊपर हमने एडमिशन लिए, बढ़ाया, बैचेस में हम्म। मतलब प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो गई। तो हम ये बता रहे हैं हम्म। आपको कि ये काम हम लोग तब कर पाए जब हम जानते थे एआई का। आपका प्रवेश क्या है कि आपको अगर बैकग्राउंड है ना, तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको कितनी हम्म। बड़ी टीम चाहिए। अगर छोटा काम हम्म। करना स्टार्ट, आप ये हम्म। एआई पे सीखो एकदम आराम से।
और इसी दिमाग से हम्म। सीखोगे, टेक्निकल चीज नहीं सीख रहे, हम सीख क्या रहे हैं, उसका एप्लीकेशन, इसको यूज कैसे करना है रियल वर्ल्ड। ये जो दिमाग में होगा ना, तो ये, क्योंकि आपको जॉब नहीं लेना है कहीं, ये 37 और 38 लाख का जो पैकेज बोलते हैं ना ये लोग, इनको आइडिया ही नहीं है मार्केट का। मेरे स्टूडेंट थे 22.5 का, 3rd ईयर में लड़का था एलपीयू में, उसका पैकेज लगा, पोजीशन था डेटा इंजीनियरिंग में। मैंने कहा डेटा इंजीनियरिंग का कौन सा टूल तुमको आता है? कह रहा सर वो तो नाम सुना है कैफका का। हम कहा कभी काम किया नहीं, तो 22.5 पे लेके तुमको कैसे लिया? तो वो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट बनाया था, उसने देखा दिखाया, क्लास के बीच में मैंने ये बात देखी है। बीच क्लास में मैंने बाकी लड़कों से पूछा, वो उससे तेज थे। अब क्या है, उसको कंपनी वाले ने कुछ देख लिया कि ये प्रोजेक्ट बनाया है, उसको 20-22 का पैकेज दे दिया। मैंने कहा वो सस्टेन कर पाएगा? 3-4 महीने में भगा देंगे। सही बात। ये कॉलेज वाले जो लगाते हैं 20-50 लाख का पैकेज, इंडिया में भगा देते हैं 50% को। हमने प्लेसमेंट कराया था 39 स्टूडेंट्स का, मेरे क्लास में 50 लोगों में 39 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन था। आप कर लीजिएगा, लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, ब्लेनहैम चालकॉट करके, अब ग्रेड कैंपस पे भरा पड़ा है। वो सारे स्टूडेंट्स मेरे क्लास के थे, 39 स्टूडेंट्स का हुआ, उसमें से एक लड़का बाहर का था, 38 उस क्लास के थे, 38 इंटर्न बने, 38 के 38 परमानेंट हुए। 2 लड़के जो है लंदन गए, उनको आउटसोर्स किया, बाकी सब मुंबई ऑफिस में, सब डेटा साइंटिस्ट बन गए 3rd ईयर में, इंटर्न बने 4th ईयर में, उनका 1 साल बाहर थे वो, इस साल उनका 4th कंप्लीट हुआ, सबका हो गया, सबका पैकेज था 8.5 लाख। अब स्टार्टिंग में 8.5 का पैकेज तो अच्छा पैकेज है, सही बुरा बात। तो नहीं है। अब ये है कि अब मैं हवाई बात करता हूँ ना कि 37 का हो जाएगा, 38 का हो सकता है, किसी एक आदमी का हो भी जाए, तो वो जनरल बात तो नहीं ना है कि यही है, रीजन होता है। वो तो ऐसे बताते हैं कि हाईएस्ट पैकेज 1.5 करोड़, एवरेज पैकेज 38 लाख, तो एवरेज पैकेज 38 लाख का मतलब है। और ये भी कह रहे हैं कि आपकी सैलरी से 150-200% हाइक। अब किसी की सैलरी अगर 10 लाख है तो उसका 200% तो 20 ही लाख पे खत्म हो जाता है। तो हाँ, एवरेज सैलरी 37 लाख, क्या तुम सारे बंदे ऐसे ही ले रहे हो जो कि 25-30 लाख पे पहले ही से हैं? तो जो 25-30 लाख के पैकेज पे है, या फॉर एग्जाम्पल जो वीपी एंड अबव लेवल के हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स में भी, तो वो फिलहाल एआई नहीं यूज करेंगे। वो अपना, उनका तो यही है, वो आईएम से कोई डिग्री ले लेंगे मैनेजमेंट की, जिसमें वो टॉप टियर में जाके बैठ जाए। उनको थोड़ी ना करना, उनको तो सीधे गरियाना है या नीचे वालों को ढकेलना है कि तुम ये करो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो फिर ये इतना बड़ा गैप बीच में, किसी को 5 लाख मिल रहा है, किसी को सीधे 50 लाख और 1.5 करोड़। तो ऐसा कैसे, तो ये बीच वाले कहाँ चले गए? नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने आपको बता दिया। देखिए जो पैकेज जितना भी आपका है ना, उससे बेहतर मिलेगा, ये बात होता है। आप एआई पे स्किल हम्म हो गए ना, एक तरह से आप नई स्किल ले लिए, अब आप हम्म अपनी फील्ड में अगर रहते हैं विद एआई, तो अब आपको हम्म ढूंढना पड़ता है कि आपका जो है एआई वाला जो है चीज, या तो आपकी कंपनी खुद नोटिस कर ले, आपको प्रमोट कर दे टॉप पोजीशन में। हम्म जैसे अब हम्म। जितनी मैक्सिमम कंपनीज है ना, उनके अंदर भी ये आती हैं पोजीशंस विद एआई, ये एआई डेटा सेल्स वाला एनालिस्ट वगैरह ऐसा। मुझे पता है, ये पेटीएम वेटीएम तो लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था तो डेटा एनालिस्ट के लिए। तो जब मुझे डेटा ही के बारे में नहीं पता था तो मैं कुछ बता ही नहीं पाया, तो नहीं वहां देखिए, पे डेटा एनालिस्ट में सब। परवेज साहब नहीं बढ़ेगा पैसा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट में नहीं बढ़ेगा उतना। पेटीएम हम्म वगैरह में भी जो है वो 17-18 है उसका डेटा हम्म एनालिस्ट पोजीशन का। हम्म हाँ, डेटा साइंस में एआई पे बढ़ेगा। डेटा एनालिस्ट क्या है, टूल है ना, पावर बीआई एक्सेल हम्म। यूज करना, वो जी। वो सिखाया जा सकता है, एआई पे सही है। समझाया जा सकता है, सिखाया नहीं जाएगा। हम्म फर्क है, इसीलिए देखिए डिफरेंस है डेटा साइंस और इसमें। सीधी बात है, आपको डेटा दिया, आप उसकी रिपोर्ट हम्म बना के दे दिए, ये डेटा एनालिसिस है। आपको आज का डेटा दिया, आप कल का डेटा प्रेडिक्ट कर रहे हो आगे क्या होगा, हम्म कंपनी हम्म। उस हिसाब से अपनी चीज को मॉडल कर रही है। ये काम बड़ा अच्छा, तो लगता इसको इसको प्रिडिक्ट करके हम शेयर मार्केट में भी तो प्रिडिक्शन, जो है, ये वो होता होगा, है कि कल शेयर बढ़ेगा या घटेगा, वो भी तो कर सकते हैं। वो तो हाई हाई यूज होता है उसका, उसी को टाइम सीरीज डेटा करते हैं, वो जो आते हैं ना हम्म टिकर्स, वो करने हम्म के। लेकिन शेयर मार्केट में बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं, तो उसके अलावा हम्म जितनी कॉग्निटिव साइंसेस है ना, जो मतलब स्टेबल डेटा है,
उस पे अच्छा हम्म। प्रेडिक्शन है। शेयर हम्म। मार्केट में बहुत सारी और फीचर्स हैं, हम एक प्रेडिक्शन देते हैं लेकिन वो वेरिएबल। उससे ज्यादा देखिए हम्म। मेडिकल साइंसेस में यहाँ पे होता है कि ये हम्म। एक आदमी का एमआरआई की रिपोर्ट देख के, हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट है ये, आपको 500 हम्म। 600 मतलब एमआरआईज की रिपोर्ट मिलेंगे, और स्किन कैंसर हम्म। का आपको एक टाइप डिटेक्ट करना है कि ये इसको मतलब लेवल 4 का कैंसर है या कम का है। हम्म। ये जो होता है डिटेक्शन ना, ये होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, ये डेटा हम्म। साइंस। ये अब डोमेन स्पेसिफिक होगा। अब जैसे जो मेडिकल साइंस से आ रहा है उसके लिए ही बहुत अच्छा है। रिटेल से जो आ रहा है वो सेल्स को प्रेडिक्ट करना, प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना। हम्म। जो मान लीजिए सप्लाई चेन में है उसको इन्वेंट्री का प्रेडिक्शन करना, कौन चीज पहले खत्म हम्म। होगी कौन चीज बाद में होगी। कोई जो है, अगर इसमें है आपका बैंकिंग में है, तो बैंकिंग में ये प्रेडिक्ट हम्म। करना कि क्रेडिट कार्ड का कौन सा फॉल्ट, ये मतलब क्या कहते हैं, ये फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन है, या फिर ये करना हम्म। कि ये जो लोन है ये बैड लोन होगा, एनपीए होगा कि नहीं। इन हम्म। चीजों में यूज होता है। तो अब तो आई देखिए, होप इनकी जॉब वगैरह मार्केट में रहती होंगी ना, एनबीएफसी वगैरह में। बहुत जॉब्स हैं, जॉब्स बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं। प्रॉब्लम ये है कि दोनों गलत जगह पे हैं। हाँ सही बात। जिसको बैंक का पता ही नहीं है, वो बैंक में ट्राई करेगा तो हम्म। क्यों बैंक लेगा उसको, रिस्क क्यों करेगा एक नए आदमी को अपना डेटा देगा। हम्म। हाँ, जो अकाउंट्स में काम कर चुका, जिसको हम्म। बैंक का डेटा समझ में आ रहा है, उसको बैंक कहता है कि हाँ भाई कराओ। हम्म। देखिए, मैं इसीलिए बताया मैंने शुरू में कि मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ और हम्म। मैं इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देता हूँ। जमीन आसमान हम्म। का फर्क है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सही वाले बात। ये कहते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं अच्छा आ रहा है, हमारे लोगों को ट्रेन करो। और हम्म। स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल सही रही तो बात। जॉब नहीं मिल रही। फर्क ये है कि दोनों गलत जगह पे है। एक बैलेंस हम्म। चाहिए। आप जिस फील्ड में हैं उसमें आप अच्छा करिए, क्योंकि उसमें आपको हम्म। ज्यादा पता है चीजें, और अगले को भी आप पे हम्म। ट्रस्ट हो सकता है कि हाँ आप ये काम कर चुके हैं भाई, एक्सपीरियंस्ड है। हम्म। तो यही है प्रवेश साहब, देखिए मैं सेल्स तो कर नहीं रहा हूँ यहाँ, और अच्छा आप सर, इसकी टोटल फीस वगैरह कितनी रहती है? ये आप बात कर लीजिए ना, जैसे कि एक्चुअली अब हम ही डिपेंड आप करता बचे हैं, है। अब तो वो मुझे जो जहाँ तक दूसरे पता हैं है, साहब वो चलेगी। हाँ हाँ, वो 97,000 ऐसे तो फीस रखी है। अब हाँ। बात कर लीजिए, उसमें ईएमआई वगैरह भी ऑप्शन है कुछ, और उसमें क्या क्या है, हाँ प्लेसमेंट का कुछ है, बाकी चीजें हैं सर, वो एक बात बताओ सर, सच बताना, फीस हाँ, ज्यादा नहीं रखी है? नहीं फीस ज्यादा नहीं रखी है इस मामले में, देखिए मैं मुस्कुराइए मत सर, ज्यादा तो है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, एक गरीब मैं साढ़े आदमी तीन कैसे लाख का करेगा कोर्स जो बताइए? मैं बोला ना, मैं अपग्रेड में 3.5 लाख के ही कोर्स में पढ़ाता हूँ, है ना। देखिए ऐसा है ना, सर वो देखिए, अपग्रेड अपग्रेड जो फोकस करता है वो गरीब लोगों को फोकस ही नहीं करता है। उसका यही मैं खाली आपको नाम ही है अपग्रेड, वो ऐड भी ऐसा करता है कि कहीं नहीं है तो अपग्रेड के पास चले आओ। इसी वजह से आदमी चला जाता है, जब वो जाता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। हाँ, बात ऐसी है ना, खैर देखिए एनीवेज, वो तो खैर, अगर देखिए मुझे परवेज करना ऐसा तो है, है ही मैं है। आपको लिटरल बता रहा हूँ सेंस में, क्यों मैं हमने ये जो प्राइस जी। रखा है क्यों रखा है। डेटा एनालिस्ट का जी। हमारा चलता है 30,000 का कोर्स, ठीक है। जी। डेटा एनालिटिक्स का 30,000 का है, वो आप बात करेंगे 25,000 में भी वो दे देते हैं, ठीक है, हम्म। वन टाइम पेमेंट पे। डेटा हम्म। साइंस में मेरा ये खुद कहना है कि सस्ता कोर्स होना ही नहीं चाहिए। एक तो हाँ नहीं इसलिए होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सबके लिए नहीं होना चाहिए, पहली बात। हम कहते सही हैं बात। कि भाई बच्चों को जो खासकर कॉलेज में है ना, उनसे मत लो यार। हाँ। वर्किंग प्रोफेशनल से लो, जो खुद कमाता है उसके फादर से मत लो। ये मैंने आज भी बोला है बात, आज भी बोली है। जैसे हमारे पास हम्म। 25-30 लोग का था, मैंने कहा नहीं, पहले उसको फोकस करते हैं जो काम कर रहा है। हाँ मेरी आधार से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं है कि बहुत 100 100 150 150 50 लोगों के बैच बनाते हैं, 15 का बैच हाँ, बनाते हैं और बस। उसी में पढ़ाते हैं। देखिए मुझे कोई, देखिए फी वगैरह से लास्ट टाइम अभी मैंने जब इवनिंग में आधार से भी बात की थी, तो उनसे भी यही मेरी सब बात हुई कि, तो वो कहने लगे लग रहा है मतलब मैंने कहा थोड़ा आप मुझे टाइम दीजिए, तो उन्होंने कहा अरे ये मतलब बहाना, उनको लगा मैं बहाना, लेकिन बहाना नहीं है। अगर बहाना होता तो मैं आप लोगों से बात ही ना कर रहा होता, या मैं इतने इंटरेस्ट से इन्वॉल्व होता ही ना मेरा। ठीक है मैं सेल्स में हूँ, बोल रहा हूँ, अलग की बात है, लेकिन जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक मुझे पता ही क्या चलेगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये समझ लीजिए वैसा है जैसे नर्सरी में कोई बच्चा एनरोल हम्म, करता है और उसको सब चीज सीखना होता है जीरो से।
इसीलिए हम बता रहे हैं ना आपको। परवेश क्या होता है ना कि देखिए, अगर मैं सिर्फ क्लास की बात करूँ ना, तो कोई बात जी ही नहीं, क्लास लेना है मैं खुद ले लूंगा। लेकिन हम टीम को इन्वॉल्व करते हैं उसमें। जैसे प्लेसमेंट वाला जो हम्म बंदा हमने लिया वो अपग्रेड में था, अपग्रेड वाले बंदे हम्म को मैं लेके आया, ये तुम आओ हम्म, इस। तो अब वो पहले से वहां जितनी सैलरी पे है उससे कम पे तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। उसको लेके आए। फिर ऑपरेशंस वाला जो था हमारा, वहाँ जो पूरा स्टूडेंट देखता है, मतलब टीचर से आपको देगा कंटेंट में, हाँ असेसमेंट में, वो लाने के लिए था, उसको हम अच्छा ऑपरेशंस सर, इसका भी जो मैं लेके स्टडी आया अपग्रेड स्टडी से। मटेरियल वगैरह मिलेगा, हाँ, उसका एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है? नहीं वो तो शायद रहता है लाइफ टाइम तक। नहीं भी रहेगा तो मैं हाँ गूगल ड्राइव आपको शेयर कर दूंगा अपनी लिंक, हाँ, क्योंकि एक्चुअली कई मिलेगा। चीज ऐसी होती है ना कि रेफरेंस के लिए, ऑल्दो ठीक है आप लोगों के रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कई बार ऐसी चीज होती है कि आदमी थोड़ा बहुत मान लीजिए भूल गए एकदम से। अब हाँ। मुझे अगर वो चीज देखनी है तो एनीवेज अगर रहेगा तो देख लूंगा, नहीं है होता है तो कई चीजों में कई बार एक्सेस ही नहीं रहता है, तो चला गया वो हाथ से। देखिए वही मैंने परवेश बताया ना कि कोर्स की जो फीस रखी है ना, वो बहुत मतलब सोच समझ के रखी है कि हम कम हम्म बैच पे काम करा पाए। हम मार्केटिंग सेल्स में बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, सीधी बात। लेकिन हम कंटेंट जो देना चाह रहे हैं ना, वो अगर अच्छा नहीं है, अब इंटर्नशिप की जो हमने अपॉर्चुनिटी रखी है बाहर की कंपनी के साथ, उन्हें हम्म पर प्रोजेक्ट देना पड़ता है हमें, पर स्टूडेंट हम्म देना पड़ता है, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम हम्म पे लाइव डेटा AWS ये वो देते हैं। तो अब हम्म ये सारी चीजों के लिए अगर हम बजट नहीं रखेंगे ना, वो वही है कि 25-30 हजार में हम कोर्स उठा के डाल दें, फायदा नहीं है। अगर हम नहीं, अच्छा नहीं पच्चीस कर तीस पा रहे। हजार में तो मुझे पता है कि हम्म, उसमें कुछ जनरली कुछ समझ आता नहीं है, हम्म, क्योंकि अगर सेशन अगर रिकॉर्डेड हुए, मोनोटोनस हुए कि मतलब आपने कभी रिकॉर्ड किए हो वो मुझे दे दिए, नहीं नहीं तो नहीं, एक दिन पहले दिन तो मुझे अच्छा लगेगा, उसके बाद मैं 100% सो जाऊंगा। आप मुझसे पूछोगे तो मैं कह दूंगा मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि यही बात जनरली होता है। होता यही है कि आपने कहा 6 महीने का कोर्स है, फिर जब हम्म, 6 महीने में तो तब होगा ना जब मैं वो चीज पढ़ूंगा। जब मुझे वो हम्म, 6 महीने में क्या 1 साल में भी नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। और फिर ये होता है कि लोग उसमें बीच में ही क्विट कर देते हैं कि अरे छोड़ो हम्म। यार, ये तो हो नहीं बताइए, रहा, क्योंकि ये चीज ये होता ही मैं है। फेस कर रहा हूँ। देखिए हम जब अपग्रेड में करते थे ना, तो हमारे जो है जी 50 लड़कों का होता था जो एक्सपीरियंस होते थे, और 100 हम्म बच्चे होते थे, स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज वाले। 150 हम्म के करीब का बैच होता था। हम्म 2 घंटे की क्लास है, किसी को माइक एक्सेस नहीं है, हम्म सब सिर्फ टेक्स्ट में लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम्म मैं एक हैदराबाद की फर्म में ले रहा था क्लास, वहाँ 350 लोग का मैंने सेशंस लिया। अब बताइए हम्म 350 में मैं किसकी बात समझ सकता हूँ, किसकी सुन सकता हूँ? सही और बात। मुझे क्या ही पता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सही। है ना। ये होता है चक्कर। अगर मैंने 15-20 लोग में है तब ठीक है, आप बोलेंगे मैं रुक सकता हूँ, बीच में आपको कर सकता हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर सही करा बात। के देख लूंगा, हाँ क्या हुआ है हम्म नहीं हुआ है। वहां तो पॉसिबल ही नहीं करना। अच्छा सर, एक चीज बताइए, हम्म, जैसे यू हेल फ्रॉम वाराणसी, हम्म। तो आप लोगों ने ये क्यों मतलब बैंगलोर या हैदराबाद ही क्यों चुना? नहीं मैं यूपी का इस पढ़ा हुआ पार्ट, हूँ क्योंकि मेरे हैदराबाद मेरे हिसाब से तो यूपी बड़ा टेक्नोलॉजी में अंडर प्रिविलेज्ड है, तो में। यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि चीजें